Assalamu alaikum to all the viewers and my incredible participants of this Rehan AI Teachers Institute. Myself, Mariam Zulfikar, training wali, working as Vice Principal at Rehan School Online Academy and facilitator at Rehan AI Teachers Institute, Teacher Training Bootcamp for 2 months. Tonight is 26th August 2025 and the time is 13 minutes past 9 p.m. UTC plus 5 according to Pakistan Standard Time, and the day is Tuesday. We have just 2 more days. So, guys, pull up your socks, complete your task. This is really time to need wake up because we have a very less number of days. And on Friday, there will be a farewell class for all of you. So, be ready for that. And you guys have to complete all the tasks in these 2 days. Okay. For start up the class, let's go for the meditation and then we'll go for the task. So, Nazimullah bhai, please share your screen for the meditation. जी श्योर मैम। Thank you. Welcome to our 30-day meditation challenge. I'm happy you made the choice to meditate today and become more positive, relaxed, and mindful in your daily life. We'll start in a comfortable seated position with our palms facing up. Close your eyes. Take a deep breath in through your nose and out through your mouth at your own pace. Take another one just like that. In through the nose, fill up your belly, and out through your mouth. Let it all out. One more just like that. Inhale. And exhale, let it all out. Continue breathing through your nose, and with each exhale, relax your body. Notice which areas feel more tense and just soften those areas with each exhale. Maybe it's your shoulders, maybe it's your eyebrows or your scalp. Soften everything in your body until you feel so relaxed, so calm and so peaceful. Now envision positive energy gathering around you. Like a magnet, you are attracting this beautiful, bright, positive energy. It is the energy of pure love, and it surrounds you. It's protecting you, and this energy bubble is growing bigger and bigger. This energy of love surrounds you, and it also moves through your body, cleansing your body of any negativity. This energy of love also goes through your body, softening any tense muscles or tense areas that you may have. Continue breathing and envisioning this beautiful energy of love surrounding you and moving through you.
rinsing away and cleansing your energy. It feels warm, it feels bright, it feels pure. Here are some positive affirmations that you can repeat with me in your mind or out loud. I am relaxed. I am safe. I am worthy. I am enough. I live with gratitude and joy. I love myself. I trust myself. Take a final moment for gratitude. And then take a deep breath in through your nose. And let it all out with an open mouth exhale. Blink open your eyes and see the love that's all around you, sending you love and light. Namaste. Thank you so very much, participants, for practicing this meditation video. I hope now you are feeling much relaxed. So let's start our class. Let's talk about yesterday's challenges, any queries, any questions, and then we'll move forward. आसिफ भाई, अब आपकी तबीयत कैसी है? आसिफ भाई, मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी मैम आ रही है जी, बिल्कुल ठीक है तबीयत। जी, अच्छा, ज़बरदस्त। अपना ख्याल रखें और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इनटेक रखें, और कोशिश करें कि जो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं खानी चाहिए उनका थोड़ा परहेज़ रखें। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। ये पहले किडनी में थी, किडनी से आहिस्ता आहिस्ता निकल के फिर ये अंदर तक पहुंच गई। चले, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे। बहुत शुक्रिया। जी पार्टिसिपेंट्स, एनी जी क्वेश्चन, एनी चैलेंज रिगार्डिंग यस्टरडेज टास्क? आप सब में से किसी का कोई टास्क हो, किसी का कोई चैलेंज हो तो प्लीज़ बताइएगा, सो दैट वी कैन कम्युनिकेट। Just करिए। जी जी, यू कैन। थैंक यू। जी पार्टिसिपेंट्स, एनी चैलेंज, एनी टास्क? मिस्टर वे ने कुछ लिखा था चैट में, आई कांट रीड इट, मैंने उसको पढ़ नहीं पाई, या फिर नहीं लिखा। जी, मिस्टर वेरिया, आप प्लीज़ माइक अनम्यूट कीजिएगा और अपना कैमरा ऑन कीजिएगा। ए मिस्टर वेरिया। जी आसिफ भाई, कोई सवाल है आपका? जी जी मैम, सवाल है टास्क से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन मेरा एक जनरल सवाल है कि हम्म। आप एक सेशन में एक सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड है उसका ओरिएंटेशन करा रही थी, तो उसके हवाले से एक सवाल है। तो वहाँ पे तो 7 डेज़ का जो फ्री ट्रायल है तो मैंने ज्वाइन किया, तो वहाँ पे तो टास्क जो है 65 आ रहे थे, लेवल 2 के भी हम्म। 55 आ रहे हैं। 7 डेज़ में ये टास्क कर लेंगे लोग? नहीं, अब आज उस सॉफ्टवेयर के बारे में बात होगी। आप थोड़ा सा क्वेश्चन को होल्ड ऑन रखें, जैसे ही मैं सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस कराऊंगी फिर आप ये दोबारा पूछ लें, ठीक है? मैं भूल ना जाऊँ। ओके ओके ओके। चलें, बहुत शुक्रिया। ओके पार्टिसिपेंट्स, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, कोई चैलेंज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम आज के टास्क की बात कर लेते हैं। आज हमने एक टेड टॉक देखनी है और एक कोडिंग का टास्क करना है। बाकी दो टास्क आपके इंडिपेंडेंट हैं कि आपने 2 AI सेशंस करने हैं और वो आप क्लास के बाद करेंगे, ठीक है? सो लेट्स गो फॉर द टास्क फर्स्ट। तो हम सबसे पहले अपने टास्क पे चलते हैं, जिसमें हम कोडिंग का टास्क सबसे पहले करेंगे। नसीमुल्ला भाई, प्लीज़ अटेंडेंस शीट शेयर कर दें ताकि पार्टिसिपेंट्स अपने अटेंडेंस मार्क कर लें और साथ साथ कोडिंग का टास्क कंप्लीट कर लें।
ओके, Miss Javeria is saying give me 5 minutes. Okay जी, I'll give you. Okay, participants, today's task number is 23rd of coding AI. आज 23rd टास्क है कोडिंग AI का, जिसमें आपने एक गेम डिज़ाइन करनी है, रॉक पेपर सीजर। शायद आप लोगों ने बचपन में बहुत ज़्यादा खेली हो, मैंने बहुत खेली थी। और ये वाहिद गेम होती थी जब मैं बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो जाती थी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में। तो फिर मैं और मेरी कुलीग ये गेम बहुत खेलते थे, थोड़ा खुद को फ्रेश करने के लिए, स्पेशली एग्जाम डेज में जब रिजल्ट कंपाइलेशन आती थी और एंड ऑल दैट। सो आज हम अपनी बचपन की सारी यादें ताज़ा करते हैं और ये गेम बनाते हैं और अपनी डिज़ाइन करेंगे आज। सो लेट्स गो फॉर इट। अच्छा, अच्छा, इसके साथ ही साथ ना एक बहुत अच्छी खबर है जो कि शायद आप में से बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने देखी भी हो, और अगर नहीं देखी तो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। और ये बहुत अच्छी है रिगार्डिंग योर किड्स, और हमारे जो छोटे बच्चे हैं अहमद, इशाल, मीरब, इनके लिए तो बहुत ही अच्छी है। अच्छा, मैं एक और बात आप सबको बता दूं कि आप सब ने एक एक वीडियो रिकॉर्ड करना है अपना, जैसे ही क्लास एंड होगी। एम आई ऑडिबल? क्योंकि मेरी स्क्रीन फ्रीज नज़र आ रही है, आप सब फ्रीज है। जी जी मैम, बिल्कुल आवाज भी बहुत अच्छे से क्लियर है और आप भी नजर आ रही हैं। चले, बहुत शुक्रिया आपका जी। तो मैं आपको ये कहने वाली थी कि आप सबसे एक लास्ट रिक्वेस्ट मेरी ये होगी, और ये आखिरी होगी, उसके बाद दोबारा मैं कोई रिक्वेस्ट नहीं करूँगी, होप सो इंशाल्लाह। बट ये एक लास्ट रिक्वेस्ट मेरी ये है कि आप सबको अपने अपना एक फीडबैक वीडियो रिकॉर्ड करना है और उसको आपने अपलोड करना है अपनी प्रोफाइल्स पे, और प्लीज़ यू हैव टू टैग मी, ताकि मैं पर्सनली लाजमी उस वीडियो को सुन लूँ। बाकी वीडियोज़ को चाहे मैं नहीं सुन पाई या नहीं सुनती थी टाइम से, लेकिन वो रिफ्लेक्शन वीडियो जो है वो मुझे ज़रूर सुनना है। और फिर हमें जो है उसको डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे भी शेयर करना होगा, ठीक है। तो आप सब ने अपना अपना एक रिफ्लेक्शन वीडियो लाजमी रिकॉर्ड करना है, चाहे 30th को कर दें चाहे 31st को कर दें, इट्स अप टू यू, यू गाइस हैव टू गो फॉर इट। अच्छा, एक वो काम करना है, और दूसरा, लास्ट क्लास में आपको अगर कोई सवाल है, कोई भी बात पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मेरी मैक्सिमम टीम मेंबर्स ज्वाइन करें, और लाजमी आप हर किसी के साथ सवाल पूछें जिन जिन की जो एक्सपर्टीज़ हैं उससे रिलेटेड। पॉडकास्टिंग में कोई इंटरेस्टेड है तो रहमत एम्पावरमेंट वाला से सवाल पूछ लें। किसी को फर्दर इस सिस्टम के बारे में कुछ जाना है तो प्रिंसिपल दौलत वाला इंशाल्लाह हमारे साथ होंगे, दौलत एजुकेशन वाला, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। एडमिशन से रिलेटेड कोई भी क्यूरी होगी तो जयप्रकाश भाई हमारे साथ होंगे, आप उनसे पूछ सकते हैं। और बस यही मेजर चीज़ें हैं जो कि आपको करनी होगी, और आप इनके बारे में पूछना चाहें तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो अगर कोई अभी से सवाल आते हैं, कुछ भी ध्यान में आता है, तो आप उनको नोट डाउन कर लें और फिर साथ साथ पूछ लीजिएगा। खबर ये है जो कि आप सबके साथ शेयर करनी थी कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, और गवर्नमेंट ने अब जो है वो एक नया मैट्रिक इंट्रोड्यूस करवाया है फेडरल लेवल पे। आई होप कि नसीमुल्ला भाई को भी ये खबर मिली होगी, और जितने आप सब एजुकेशनिस्ट हैं उनके पास ये खबर पहुंच चुकी होगी। मैट्रिक और स्किल्स साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान का ये एक नया कदम है जो कि फेडरल मिनिस्ट्री जो है सबसे पहले इसको जो इम्प्लीमेंट करने जा रही है। और इस मैट्रिक का नाम जो है वो स्किल के साथ साथ मतलब ये है कि वो आपको मैट्रिक भी खिलाएंगे, और इसके साथ बच्चे को अब वो बात जो कि बहुत सारे पेरेंट्स को समझ नहीं आ रही थी, और आप सबने जितना ने भी मेरा इंटरव्यू किया उस सब ने ये लाजमी पूछा, और हाल ही में जो मेरा इंटरव्यू है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड थे। यही बात हम कह के पिछले 1.5 साल से, बल्कि 2-3 साल, 2 साल हो गए हमें ये बात समझाते हुए करते हुए, लेकिन नहीं समझ में आ रही थी। लेकिन इंशाल्लाह आप गवर्नमेंट करने जा रही हो तो आप सबके लिए बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। बच्चे जो हैं वो नॉर्मल सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ेंगे, जिसमें कि उनके पास पाकिस्तान स्टडी, इस्लामियात, साइंस, मैथ्स, आर्ट्स, ये इस तरह के कोई भी सब्जेक्ट्स वो नहीं पढ़ेंगे। दे विल चूज अकॉर्डिंग टू देम, वो अपने खुद सब्जेक्ट्स चूज करेंगे जिसमें उनको जनरल साइंस या जनरल मैथमेटिक्स वो पढ़ने होंगे। और उसके साथ साथ वो अपने लिए एक स्किल चूज करेंगे। 10 स्किल्स इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं, और 10 स्किल्स में जो इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं उसमें ये है आईओटी और डाटा कोडिंग, ये एक सब जो है वो स्किल इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। ग्राफिक डिज़ाइन एंड मीडिया इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। प्लम्बिंग और सोलर वायरिंग इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है।
सॉरी प्लम्बिंग और सोलर वाटर बैटिंग ये इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। अब ये मुझे खुद नहीं पता ये क्या है। पानी और सोलर सिस्टम्स इंस्टॉल और हाँ मरम्मत तो करना, ठीक हो गया जी। और उसके बाद फैशन और ड्रेस मेकिंग है, प्रोफेशनल शेफ है, ब्यूटी और हेयर सर्विसेज है, टूरिज्म एक्सपर्ट है, HVACR और AC एंड कूलिंग की जो सर्विसेज है उसके बारे में, होटल मैनेजमेंट के बारे में। तो ये 10 डिफरेंट फील्ड्स होंगी, स्किल्स होंगी, जो कि स्टूडेंट्स के साथ उनको अपनी लिबर्टी में रहते हुए और अपनी स्किल्स इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो इनमें से कोई भी चूज करेंगे, अलोंग विद द मेट्रिकुलेशन। जो उनके मेट्रिक के सब्जेक्ट्स होंगे उसके साथ साथ वो इन 10 में से कोई एक स्किल भी साथ में सीख जाएंगे। तो यही बात काफ़ी अरसे से हम लोग कह रहे थे, तो अल्लाह का शुक्र है कि गवर्नमेंट ने भी इनिशिएट ले लिया। मैम। जी 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 सुलेमान साहब। मैम हमारा तो वक्त निकल गया है, मेरा और कोई अहमद बात नहीं मेरे मुस्तफ़ा भाई, भाई। देर आए दुरुस्त आए ना। तो आप लोग नहीं अभी कर सकते हो ना। अभी देखिए वो नहीं। फेडरल लेवल हाँ पे जी इंट्रोड्यूस हो रहा है, बिल्कुल। तो अभी परेशानी वाली हम्म, कोई बात नहीं है। अभी तो हाँ मेट्रिकुलेशन में जी। आया ना, तो यूनिवर्सिटी लेवल पे भी तो कुछ आएगा। हम्म, हाँ जी मैम, वो मेरा दोस्त है, वो साइबर सिक्योरिटी का काम कर रहा है यहाँ पे। ये यूनिवर्सिटी एक न्यू इंट्रोड्यूस करवाई है, वहाँ पे भी अब मेरा दिल है वहाँ पे जाने का, साइबर सिक्योरिटी वगैरह करने का। हम्म। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज है ना, आप इनका हम्म। अवेल कर सकते हैं। और मैम एक और बात मैंने पूछनी थी। जी जी पूछें। मैम वो मैंने पूछना था, जब ये मतलब क्लासेस एंड होंगी तो हमें ग्रुप हाँ से भी जी। रिमूव कर दिया जाएगा या? नहीं, हम किसी ग्रुप से नहीं निकालते। क्योंकि मैं ना अभी ना 20 या 21 के ऊपर पहुंच चुका हूँ, और मेरे ना सिर्फ इंटरव्यू करने वाले रह गए। मैंने आज रात को बैठ के तकरीबन सारे टास्क मैं कंप्लीट कर दूंगा, थोड़े से मेरे रह गए हैं। तो फिर मैंने कहा इंटरव्यू का फिर मसला ना हो जाए लोग इन ना पार्टिसिपेंट से कांटेक्ट करने में। नहीं नहीं, पार्टिसिपेंट्स आपके साथ ही रहेंगे, उनमें परेशानी नहीं होगी आपको। और ग्रुप भी नहीं रिमूव किया जाएगा, ताकि जब तक लास्ट पार्टिसिपेंट के टास्क 100% कंप्लीट नहीं हो जाएंगे, ग्रुप में कोई भी रिमूव नहीं होगा। बस यही पूछना था। थैंक यू मैम, थैंक यू। चलो तसल्ली रखो। जी मैं सिर्फ। अस्सलाम वालेकुम। मैंने ये पूछना था कि आपने बोला वालेकुम कि सलाम। रिफ्लेक्शन वीडियो जो है रिकॉर्ड करनी है, तो रिफ्लेक्शन फॉर बट आपका रिफ्लेक्शन, सिस्टम का रिफ्लेक्शन या ओवरऑल ओवरऑल, सबका रिफ्लेक्शन किस ओवरऑल टॉपिक पे आप बात सिस्टम करनी के है? बारे में रिफ्लेक्शन, सिस्टम के कितने बारे मिनट में बात रिफ्लेक्शन करनी है? ज़्यादा रखे। इट डिपेंड्स, मतलब ज़्यादा लंबी नहीं रखिएगा, 3 मिनट की मैक्सिमम वीडियो रखिएगा, जिसमें आप जो रेहान AI टीचर्स इंस्टीट्यूट में आपने सीखा, आपने जब शुरू किया क्या रिजर्वेशन थी, शुरू करने के बाद कहाँ तक समझ में आया, और फिर लास्ट में आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, वो लाजमी ऐड कीजिएगा। बस मेरा रिफ्लेक्शन आप क्लास में देंगे ना मेरी टीम के सामने, ताकि उनको समझ में आ जाए कि और क्या क्या चीज़ें चेंज करनी है, फिर मरियम को अगला बैच ना दे। जी बिल्कुल शान। अच्छा, मैं हाथ उठा के ना बाद में मैं भूल गई थी कि मैंने क्वेश्चन भी करना है, मैं तो कोडिंग करने लग गई थी। मिस सिरम, अच्छा। मैंने मेरी आपके साथ डिस्कशन हुई थी जब आपने मेरा इंटरव्यू लिया था, तो मैंने आपसे कहा था ना कि पानी जब बहता है ना तो रास्ता बना ही देता है। तो देख ले, कहीं ना कहीं से स्टार्ट हो गया। और दूसरा जो है ये 2 वीक्स बिफोर ये टीचर्स की ट्रेनिंग हुई है डिजिटल लिटरेसी पे। और हर स्कूल से उन्होंने एक टीचर को उन्होंने कहा है कि अगर आपका आईटी है तो उसको भेजिए, अगर आईटी नहीं है तो जो भी रेलिवेंट है और जो आपको लगता है कि आपको सिखा सकता है या आप डील कर सकता है, उस टीचर को आप भेजिए। तो ये 2 हफ्ते पहले गवर्नमेंट ने डिजिटल लिटरेसी की ट्रेनिंग भी करवाई है, और वो जो सारे मेंबर्स हैं वो अब अपने अपने स्कूल में जाके उसके अकॉर्डिंग जो वो लेक्चर डिलीवर करेंगे और अपने अपने साथी जो टीचर्स हैं उनको बताएंगे। तो कतरा कतरा करके सही कदम जो है वो चलने शुरू हो गए हैं। और जबरदस्त, ये जो बिल्कुल बिल्कुल। रिफ्लेक्शन वीडियो बनानी है, रिफ्लेक्शन वीडियो जो हमने बनानी है इसमें मतलब ये पहले रिकॉर्ड करनी है हमने, नहीं रिकॉर्ड आप करके पहले नहीं अपलोड करनी रिकॉर्ड है? करें। हाँ जी, आप 30th अगस्त को या 31 अगस्त को अपलोड करेंगे, और रिकॉर्डिंग आप उसको कर लीजिएगा। जैसे आपका ये पूरा मतलब लास्ट पे आपके क्वेश्चन जो सारी चीज़ें हो जाएंगी ना क्लियर, उसके बाद फिर आप अपनी जो भी आपकी लर्निंग्स हैं और जो कुछ आपने सीखा, जो कुछ आपको लगा कि आप क्या एक्सपेक्टेशन से आए थे वो कितनी मीट हुई या नहीं हुई, ये सारी चीज़ें। जैसे मेरा जो है, मैंने ये राहुल टेलर वाला जो उनके साथ मैंने इंटरव्यू किया था,
तो वो हमारी जो डिस्कशन है वो बहुत लंबी होगी। तो उन्होंने लिया था ना, उनका गिवन था और मेरा जो है वो सॉरी मेरा गिवन था, मेरा गिवन इंटरव्यू था। तो वो बड़ा लंबा चला गया, तो तकरीबन ना वो 1.25 घंटे का हो गया था। वो बात से बात निकलती गई, बात से बात निकलती गई, तो वो ना बहुत लंबा हो गया। और वो जो है वो रेहान एकेडमी के जो प्लेटफॉर्म है वहां से भी शेयर हुआ था। तो जिस तरह से जो हमारी वीडियोस बनी होंगी, जो जो इस तरह से हम लोग अपलोड करेंगे, वो क्या आपके प्लेटफॉर्म से शेयर होंगी? बिल्कुल होंगी। दीज आर कॉल्ड टेस्टिमोनियल्स ना, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे लिए हमारी ऑडियंस का फीडबैक मैटर्स अ लॉट। तो हमें अपनी ऑडियंस के जो जो हमारे ड्रॉबैक्स हैं या सिस्टम की जो चीज़ें हैं जिनको अपग्रेड करने की जरूरत है, वो मैं इसीलिए बार बार कहती हूँ कि वो लर्नर्स की एक्सपेक्टेशन और उसकी नीड के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया जाता है कि आपने अब क्या डिलीवर करना है, आपके लिए आने वाली ऑडियंस कैसी होगी। तो जब आपके रिफ्लेक्शंस आएंगे, आपकी तरफ से सजेशंस आएंगी, तो जहाँ तक हम सिस्टम में या करिकुलम में ऐड करने की ज़रूरत होगी, विल गो फॉर इट एंड डेफिनेटली विल शेयर ईच एंड एवरीथिंग कि आपको आपका सफ़र कैसा रहा, क्योंकि आपकी वजह से बहुत सारे लोगों की हिम्मत बन जाएगी ना, आपकी वजह से बहुत सारे लोग और इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन जाएंगे। दैट्स वाई। जी मिस सिरम, आपको कुछ कहना है? जी मिस गुलशान, बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन के। तो मैं भी आपको एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि डिजिटल पाकिस्तान एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जो है पाकिस्तान में थ्रू आउट एआई जो है वो सिखाई जा रही है। हम यहाँ पर एआई के कुछ स्पेसिफिक सेशंस पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पर जो है बिल्कुल डिफरेंटली एआई सिखाई जा रही है। तो आज मैंने उसकी क्लास ज्वाइन की है, मुझे इनविटेशन आया था। सर अमार जाफरी हैं, उन्होंने मुझे इनवाइट किया, मैंने उनकी क्लास आज ज्वाइन जी की। जी अभी बिल्कुल। खत्म हुई है तो मैं अपनी क्लास में वापस आ गई। मैंने कहा मैं यहाँ आती हूँ क्योंकि यहाँ में आना जरूरी है ज़्यादा। तो वहां पर जो है मेरा एक कनेक्शन बना। मैं अपने फेलोज को इसलिए बताता हूँ कि हम सब मोटिवेट हो इन चीज़ों से। सर नजम हसन है जो कि अमेरिका की यूनिवर्सिटी के एआई के पीएचडी के साइंटिस्ट हैं, तो वहां पर एआई पढ़ाते हैं। तो आज मेरा उनसे भी कनेक्शन बना, उन्होंने मुझे लिंक्डइन पर ऐड किया और उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको एआई की और भी चीज़ें सिखाऊंगा। तो ये जो कतरा कतरा आप बात करिए कि ये इतनी खूबसूरत चीज़ है। पाकिस्तान में सीआईटी सेंटर्स बनने जा रहे हैं और एसडीजीज मुझे नहीं पता अभी क्या है। सर अमान ने मुझे इनवाइट किया कि 7:30 मॉर्निंग में आप आके मेरे से आई पढ़े, मैं आपको बताऊंगा। सीआईटी सेंटर पाकिस्तान के हर शहर में बने ताकि हम पूरी दुनिया से ग्लोबली लिंक हो जाएं। और यहाँ पर पाकिस्तान में जिन लोगों को जॉब की जरूरत है और अमेरिका में लोगों को अपने लिए वर्कर्स की जरूरत है, तो हम ऑनलाइन बैठकर अपने बच्चों को जॉब दें, तो हमारे बच्चे स्किल सीखें। तो ये पाकिस्तान में पूरा इनिशिएटिव शुरू हो रहा है। और एक हमारे डिजिटल सेनेटर हैं सर अतीक, वो वहाँ पर मौजूद थे, तो वो इस बात को बहुत अच्छी डिबेट लेकर चल रहे थे। तो ये हमारा वर्ल्ड वाइड जो देखे ना, हमारे मुल्क में जो पूरी कौम की हैसियत से हुकूमत ने भी एक अपना इनिशिएटिव ले लिया, तो ये पार्ट हो रहा है। और जब मैंने अपना इंट्रोडक्शन करवाया कि अच्छा वहाँ पर इतने सीनियर लोग थे, मैं बड़े उससे हैरत से ये बात देख रही थी कि लोगों को ना फिर भी जो जूम है उसको यूज करने के एथिक्स नहीं पता थे कि अगर आप बात करें आपका कैमरा ऑन होना चाहिए, आपको तस्वीर कैसे लगानी चाहिए, आपने अपना नाम कैसे, जिस तरह हमें हमारी मिस मरियम ने कितना प्यारा गाइड किया। और मैं वहां पर ऐसे प्रोफेशनल टाइकोन टाइप बनी हुई थी कि मिस सीरम मुश्ताक एजुकेशन वाली तस्वीर, कैमरा सब ऑन, और इतने कॉन्फिडेंस से बात करें। मैं रेहान एआई टीचर इंस्टीट्यूट का हिस्सा हूँ, वहां पर मुझे ये चीजें एआई की सिखाई गई हैं। तो मैं यहाँ पर इसलिए इस तरीके से बैठकर बात कर रही हूँ। तो मुझे मेरे लिए बड़ा प्राउड मोमेंट था। और मेरी टीचर का बहुत शुक्रिया, मेरे सिस्टम का बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे इसके एथिक्स दिए कि आपने ग्लोबली बैठकर बात कैसे करनी है। और लोगों ने मुझे इतना सीरियसली सुना और लोगों ने मुझसे कनेक्ट भी होना शुरू कर दिया। तो ये हमने कितनी अच्छी चीजें सीखी हैं। तो अगर हम सीआईडी सेंटर्स, मैं अपना मुल्तान में बना लेती हूँ और मैं अपने बच्चों के लिए एक स्टेप लेती हूँ कि मेरे बच्चों को बाहर जो है वो, जिस तरह मेरा एक नारा है कि अर्निंग विद लर्निंग, लर्निंग विद अर्निंग, तो उससे बच्चे सीखें भी सही और कमाएं भी सही। तो ये कितना बड़ा इनिशिएटिव है। वहाँ पर फॉरेनर्स बैठे थे जो कहते हैं कि हमारे पाकिस्तान में जानने वाले नहीं है, हम किनको किस तरह हम वो मतलब यानी कि गाइड करें। तो ये स्टेप्स, ये जो आप बात कर रही थी, ये कितने प्यारे स्टेप्स हैं। और अगर हम सीरियसली इस प्लेटफॉर्म पर से सीखें और काम करना शुरू करें तो हम पाकिस्तान के लिए बहुत सारा कुछ काम जो है वो कर सकते हैं। तो मैं भी अभी वहां से वापस आई हूँ अपनी क्लास में, तो मैंने कहा मैं भी आपके साथ एक अच्छी गुड न्यूज़ शेयर करती हूँ। थैंक यू।
थैंक यू मिस सीरम, बिल्कुल ऐसा ही है। और जो अमार जाफरी साहब हैं, रेहान अल्लाह सर के बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छा कनेक्शन है उनका माशाल्लाह से। और वो भी बिल्कुल डिजिटल पाकिस्तान के लिए ही बहुत कोशिशें कर रहे हैं, और सर रेहान की तरह ही। और बहुत सारे लोग सर रेहान ने उनसे कनेक्ट कराए, मतलब दे हैव अ म्यूचुअल फ्रेंड्स। तो वो दोनों का कॉज सेम ही है, और दोनों ही चाह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है जल्द से जल्द डिजिटलाइजेशन पे फोकस कर ले तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया मैं सीरम। और प्लीज़ बाकी सब फ्रेंड्स भी कोशिश कीजिए, इसको अगर ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग भी। और इसका हिस्सा बनने और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करें अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़, बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज़, दोनों साइड पे बहुत अच्छी चीज़ है। मिस गुलशान, आपका कोई और सवाल है या मैं मिस लैला का सवाल लूँ? जी थैंक यू मिस गुलशान। जी मिस लैला, आपका क्या सवाल है? जी मैम, मेरा जो आपने अभी एक इंफॉर्मेशन हमारे साथ जो कि बहुत अच्छी लगी शेयर की, तो मैम आपने ऑब्वियसली अगर ये न्यूज़ सुनी है तो प्रॉपर तरीके से सुनी होगी। इसमें मुल्तान बोर्ड और सिंध बोर्ड और डीजी खान बोर्ड क्यों नहीं ऐड किया गया? कोई रीजन इन्होंने दी है अभी साथ? असल में ये है ना कि कोई भी चीज़ जो शुरू की जाती है ना, तो उसको प्रॉपर सिस्टमाइज होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो थोड़ा जी मैम। पेशेंसली चले। इंशाल्लाह चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। फेडरल मिनिस्ट्री ने अभी इंट्रोड्यूस कराया, तो इंशाल्लाह ये प्रोवेंशन लेवल पे भी आ जाएगा। तो अभी वो जैसे कहते हैं ना, एक टेस्टिंग, पायलट टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी होता है कि आउटपुट्स क्या आते हैं। ऑडियंस का, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका आउटपुट्स क्या आता है, वो कितने इंटरेस्टेड नज़र आते हैं, और पेरेंट्स का आउटपुट क्या आता है, फिर टीचर्स का आउटपुट क्या आता है। ये तीनों का ऑन बोर्ड रहना बहुत ज़रूरी होता है। और जब तक ये जी ऑन मैम। बोर्ड नहीं आते तब तक वो कोई भी चीज़ आप ओवरऑल पाकिस्तान के लिए एक बड़े पैमाने पे नहीं कर सकते। मैं इसका एक डॉक्यूमेंट भी है, वो भी शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ, और ये भी शेयर कर दिया मैंने। तो आप सब प्लीज़ इसको गो थ्रू कर कीजिएगा। मैसेज मैंने फॉरवर्ड कर दिया है, और ये मुझे रात ही सर रेहान ने हमारे ग्रुप में फॉरवर्ड किया था, तो आई थॉट कि ये हर जगह पहुंचना चाहिए। मैंने स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर किया, आपके साथ भी शेयर करिए, ताकि आप सब भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करें और अपने बच्चों के लिए इन चीज़ों को ज़रूर देखें। ठीक है। जी मैम, क्वेश्चन तो यही था मेरा रिलेटेड, बस यही थोड़ी सी बात आपसे मालूम करनी थी। बाकी मैम, मिस इरम की हमने बात सुनी, बहुत अच्छी लगी। थैंक यू, आपने अपनी ये एक अच्छा तजर्बा हमसे शेयर किया। बट मैं आपकी बात के साथ थोड़ी सी बात ऐड करूंगी। मुझे नहीं पता मिस इरम आपका कोई बच्चा इस इदारे से अटैच है या नहीं। मैं बिल्कुल ही ईमानदारी से ये एक बात ऐड करना चाह रही थी। आपने एक बात की कि कैमरा फेस करना नहीं आ रहा था बहुत सारे लोगों को, सर जाफरी साहब जैसे वो हैंडल कर रहे थे, और मैं एक बड़े सलीके से उस क्लास को ले रही थी और मुझे सारी चीज़ें आती थी। तो आप ये देखें, इस सिस्टम की चीज़ जो मुझे जिसने बहुत इम्प्रेस किया, और 1 डेढ़ साल से मेरे ऐसे नई सरकमस्टांसिस थे कि मैं प्रॉपर इनसे जुड़ती, बट अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं और मेरी एक ही बेटी है जो कि हम जुड़ चुके हैं। तो मैं अब देखती हूँ, मैं क्लास में भी होती हूँ, 2 क्लासेस में अब मैं होती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा ट्रेन करने के लिए ही बिठाया गया है। ऑब्वियसली अभी मैं खुद स्टूडेंट हूँ। तो मैं आप सबसे ये बात स्पेशली ऐड करना चाह रही थी, जैसे ही मिस इरम की बात सुनी है, कि जब बच्चे वो एक जैसे आप अपने लिए फीलिंग्स फील कर रही थी ना, तो वो चीज़ जब मैं बच्चों को देखती हूँ, वो इतने खूबसूरत तरीके से क्लासेस में एक प्रो बन के माशाल्लाह बैठे होते हैं, तो थोड़े ही टाइम में। और मैं उन उन सब से ना अपने आप को जूनियर समझ रही होती हूँ और फील भी कर रही होती हूँ। और साथ साथ माशाल्लाह ट्रेनिंग इतनी दी जा रही है, ACCL की जो बुक है, और वो जो एक बच्चा करता है उसके पेरेंट्स के थ्रू पहले उसको एक कॉन्फिडेंस दिलवाया जाता है, उसके बाद फिर माशाल्लाह से मिस यास्मीन है, अगर मैं नाम गलत नहीं ले रही, तो वो एक बच्ची जो कि मेरे ही ग्रुप में थी, जिस क्लास में मुझे बिठाया गया है, मुजफ्फरगढ़ साइड की बच्ची हैं वो, अरीका। तो वो मैं उनकी, क्योंकि मेरा एक है कि जो बच्चे मुझसे रिलेट है कुछ भी नया करते हैं, तो मैं खुद जाके उनकी वीडियो देखती हूँ फेसबुक पे खुद से निकाल के। तो मैंने देखी, और वहां पे प्रॉपर एक बिजनेस करने वाले बंदे जो कि इस चीज को बहुत डेप्थ में जानते हैं, और वो ऑब्वियसली वो फिर सरिहान के सिस्टम में है, तो वो बहुत ज्यादा डीपली इस चीज से उनका ये काम भी था और अटैच किया हुआ है माशाल्लाह। जिस तरह के जो लोग भी बहुत ज्यादा अपनी फील्ड में प्रो हैं, उनको इस टीम का हिस्सा बनाया जा रहा है बतदरीज। और वो उन बच्चों को मैम यास्मीन बैठ के और वो सर बैठ के, छोटे छोटे बच्चे जो कि अभी 5th क्लास, 7th क्लास, 6th क्लास के बच्चे, उनसे वो स्किल्स ले रहे हैं कि अगर आपको डिजाइनिंग आ रही है, लिटरली वही वर्ड बता रही हूँ जो सर उनको कह रहे थे, कि अगर आपको डिजाइनिंग आ रही है, आप डिजाइनर बन गए हैं, या इस चीज को आप अल्हम्दुलिल्लाह काफी गेन कर चुके हैं,
आपने हमारे साथ 1 साल बिताया है, या आपने 1.25 साल गुजारा है, या 8 माह गुजारे हैं, तो अब आपको ये स्किल्स भी लेनी है कि हमने बिजनेस लेना कैसे है लोगों से, हमने ये चीजें ग्रो करनी है। तो वाकई एक बहुत ज्यादा कमाल की बात है। तो हम ये चीज अपने बच्चों के लिए जब देखते हैं तो मेरे ख्याल में हम जितना मैम और सर और टीम का शुक्रिया अदा करें तो वो कम है। थैंक यू मैम। थैंक यू रैला जी। आसिफ भाई, आपका कोई सवाल है? जी, मेरा सवाल नहीं, मुझे ये बताना था कि जैसे मिस इरम ने बताया कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया, वहाँ पे लोगों की जो कैमरा है वो सेटअप नहीं था, उनको बराबर तरीके से चलाना नहीं आता सिस्टम। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैंने इंटर्नशिप के लिए गूगल मीट पे जब ज्वाइन किया तो वहाँ पे लोग क्वेश्चंस कर रहे थे, वो ऐसे ही क्वेश्चन कर रहे थे धड़ाधड़, उनको पता नहीं था कि हैंड रेज करना होता है पहले, फिर क्वेश्चंस करते हैं नंबर वाइज। तो एक क्वेश्चन करता था, दूसरा उसके ऊपर क्वेश्चन कर देता था। तो फिर मैंने जब क्वेश्चन किया तो मैंने हैंड राइज किया, तो जो एडमिन था वो समझ गया कि क्वेश्चंस किस तरह ऐसे ही होते हैं, फिर उनको उन्होंने बताया कि क्वेश्चंस आप किया करें तो इस तरह से ही किया करें। तो एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे सीखी है रिहान स्कूल से, ये चीज़ मुझे ज़िंदगी भर के लिए काम आएगी, उम्र भर के लिए काम आएगी। बहुत शुक्रिया जी। आसिफ भाई। जी बिल्कुल सर। मिस मरियम, एक कमी अभी तक रह गई है कैनवा पे। जी जी। ने जो है वो वीडियो बनानी, उसकी जो भी जो उसकी एडिटिंग करनी है वो भी सीख ली है। कैनवा इस्तेमाल होता है ग्राफिक्स के लिए भी। तो हम्म। कोई एक पोस्ट या कोई एक सैंपल वो नहीं हमारे साथ कोई बनवाया, हमसे ना बनवाया गया, ना हमें दिखाया गया कि ग्राफिक को अगर अगर हम लेना चाहते हैं या उसमें कुछ चीजें करना चाहते हैं। तो वो अभी तक एक कमी है जिसकी नो हाउ जो है ऐसा डेवलप नहीं हुई। मेरी तो नहीं हुई क्योंकि मैं बिल्कुल न्यू कमर हूँ। मेरी नहीं हुई सही। इस तरह से। जैसे जैसे आपका मैंने देखा था कि वो आपका जो ये जहाँ पे वाइस प्रिंसिपल और पीछे जो आपका लगा हुआ है उसमें लाइनें शाइनें सी लगी हुई हैं, 2 लाइन इधर है 2 लाइन इधर, इस तरह से करके। तो इस तरह से कि हाँ। वो ग्राफिक्स का ही कमाल है ना, कि वो हम्म। ग्राफिक्स का करके करते हैं। पहले तो मुझे ये बता दीजिए। अच्छा, वो कैनवा से ही करते हैं। और दूसरी बात ये है, जो आपने काम सीखा है बेसिकली ये ग्राफिक्स ही है। अब जैसे अभी ये मिस जवेरिया की प्रोफाइल पिक्चर लगी हुई है ना उनके बेटे की, दिस इज द सेम। अब होता ये है कि जब आपने कोई डिज़ाइन बनाना होता है ना, उसके लिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप डिज़ाइंस को कॉपी करना शुरू करें। आप जितना ज़्यादा कॉपीज करते जाएंगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होती जाएगी। अब आप मेरी प्रोफाइल पिक्चर देखते हैं, आप उसी की कॉपी करके अपनी प्रोफाइल पिक्चर बनाना शुरू करें। ऑटोमेटिकली आपका जो क्रिएटिविटी है वो आपको खुद बताती जाएगी कि आपने कहाँ पे कलर किस तरह से यूज़ करना है, कौन सा कलर कितना प्रोमिनेंट होना चाहिए, कौन से वर्ड को किस तरह प्रोमिनेंट करना है। ये सारा ग्राफिक्स ही है। और आपने जो कैनवा डिज़ाइंस बनाया दैट्स कॉल्ड ग्राफिक्स, उसको ग्राफिक्स ही कहते हैं। अब उसको अभी जो है आप लोगों के ये ख्वाहिश है तो मैं अभी थोड़ी देर में आपको 2 मिनट में ये गाइड कर देती हूँ कि ये वाली प्रोफाइल पिक्चर कैसे बनती है। आप सब भी उसको अपनी अपनी प्रोफाइल पिक्चर को डिज़ाइन कर सकते हैं, जिसको कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत डिफरेंट कलर थीम्स के साथ भी डिज़ाइन किया था। तो ये आपको बेसिक यहाँ पे हम ये कोशिश करते हैं कि आपको 2 महीने में जितनी बेसिक्स चीज़ें गाइड की जा सकती हैं वो आप करें। बाकी एक्सप्लोरेशन आपके अपने हाथ में है। आप जितना ज़्यादा किसी भी टूल को एक्सप्लोर करते जाएंगे, उसके बारे में डिगिंग करेंगे या उस पर ज़्यादा रिसर्च करेंगे, उसको टाइम देंगे, आप उतने अच्छे हो जाएंगे उसके अंदर। उसकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप किसी दूसरे का कोई भी डिज़ाइन पकड़ें, किसी दूसरे की कोई वीडियो देखें और उसको अपनी वीडियो क्रिएट करने की कोशिश करें। ऑटोमेटिकली आपकी जो स्किल्स एनहांस होना शुरू हो जाएंगी। और यही हम सब करते हैं। यहाँ कोई मास्टर ट्रेनर नहीं बैठा हुआ हमारे सिस्टम में, और हम कहते भी नहीं है कि यहाँ कोई मास्टर ट्रेनर आपको मिलेगा। हम सब ने भी गलतियाँ कर करके सीखा है। इवन रेहान सर खुद कहते हैं कि मैं बहुत गलतियाँ करता हूँ और उन्हीं से सीखा हुआ आपको सबक सिखाता हूँ। और उन्होंने 150 फेलियर्स जो है उनकी पीएचडी की हुई है। वो खुद ये कहते हैं मैंने फेलियर्स में पीएचडी की हुई है, कि 150 स्टार्टअप शुरू किया और उनमें फेल हुए। तो ये सारी चीज़ें जो वो आज हमें करा रहे हैं ये उनकी अपनी ज़िंदगी का ओवरऑल हासिल है, जो कि उन्होंने फेलियर्स के बाद अचीव किया। और वो चाहते हैं कि अब पाकिस्तान में कोई मेरी तरह दोबारा फेल ना हो, किसी भी स्टार्टअप पे जाके, किसी भी चीज़ में जाके, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो। तो ये बात है। और बाकी रही बात इसके अलावा किसी भी टूल की,
तो आप जितना एक्सप्लोर करते जाएंगे आप, जैसे अभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जिसको देखते हैं वो मिस्टर बीस्ट है। आई डोंट नो, मैंने आज तक नहीं उस बंदे को देखा और ना ही मुझे पता है वो कौन है भाई साहब। लेकिन उसके थंबनेल्स बच्चों को बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, उसको बहुत कॉपी करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप एक थंबनेल लें किसी का भी, आप सेम अपना क्रिएट करना शुरू करें, रॉ से क्रिएट करें, ताकि आपको समझ में आएगा एलिमेंट्स कहाँ से सर्च करते हैं और इस जैसा एलिमेंट मुझे क्यों नहीं मिल रहा। फिर जब वो क्यों नहीं मिल रहा ना, तो फिर आपकी अपनी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी ना, तो ऑटोमेटिकली आप उसके जैसा डिज़ाइन क्रिएट करोगे। पहली बार तो नहीं होगा, पहली बार तो वो तकरीबन नियरली भी इक्वल नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन दूसरी बार, तीसरी बार, 10वीं बार आपका सेम टू सेम बन जाएगा जैसे उसने बनाया था। दैट्स मेक्स परफेक्ट यू। मिस अगर पॉसिबल हुआ तो एक जो है वो सैंपल हमारे साथ शेयर कर दीजिएगा, मतलब अभी मैं हमें क्लास अभी में। आपको बना के दिखा देती हूँ अभी क्लास में ही। बस 1 मिनट दे दे मुझे, ये पता कर लेंगे कि कोडिंग का टास्क हो गया, उसके बाद हम ये अभी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस मरियम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम राहुल भाई, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक। मिस मरियम, मेरा एक क्वेश्चन था और मैं लीव कर रहा हूँ, मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है। मैंने आपको मैसेज हाँ किया जी। होगा, आपने पढ़ा होगा। आप, हाँ मैंने मैसेज देख लिया। हम इसके बाद मेरी मीटिंग है दौरा सर से, तो फिर मैं ये सारी चीज़ें उनके साथ डिस्कस कर लेती और हूँ, फिर मुझे आपको क्लास उसका कैसे सोल्यूशन भी लाइव करनी, भेजती हूँ। मैं जा रहा हूँ सोने, इसलिए मैं लीव कर रहा हूँ। और आप डिस्कस कर लीजिएगा, आप यूट्यूब पे कोई पोस्ट भी नहीं होगी, लाइव भी नहीं होगी, तो कैसे क्लासेस होगी? एक साथ क्लासेस होती हैं, दौलत भाई से डिस्कस कर लीजिएगा इतना हो काम। जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, ओके। वो वेट कर लो बस। ओके। ठीक है। ओके, अल्लाह ओके। हाफिज़, मैं लीव कर रहा हूँ अल्लाह आज। हाफिज, अपना ख्याल रखो। अच्छा पारिसमैन, सबसे पहले तो एक चीज़ मैं आप सबको बता दूं कि आप आज से ये चीज़ नोट डाउन कर लें कि आप अगर इस सिस्टम का हिस्सा रहना चाहते हैं तो आप सबको अपना जो बैकग्राउंड है उसको चेंज करना होगा। जब भी आप इंटरव्यूज के लिए जाएं, किसी ऑफिशियल मीटिंग में बैठे, मीरब, इशाल, पार्टिसिपेंट्स प्लीज राइट इन द चैट आप में से किस किस का टास्क। अरे मिस जवेरिया कैसी हैं आप? आपको फीवर है? अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे, आप जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाए। अच्छा मिस जवेरिया, ऐसा है कि हमारे पास सिर्फ 2 दिन रह गए हैं और 2 दिन के बाद हमारी जो है वो फेयरवेल क्लास है। सो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मैं ये नहीं कह रही कि ओवर बर्डनाइज कर दे खुद को, लेकिन जितना आसानी से अपना काम कंप्लीट कर सकती हैं उसको टाइमली मैनर में कंप्लीट कर लीजिएगा। दो आई विल गिव यू द टाइम, मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम दे दूंगी, नो वरीज। लेकिन आपके वो पार्टिसिपेंट्स जिनके जो है वो सर्टिफिकेट्स ऑन द डे, वेरी नेक्स्ट डे जो है वो पोस्ट हो जाएंगे सैटरडे को। सो आई एम सॉरी कि जिनके नहीं होंगे फिर उनको थोड़ा टास्क 100% कम्प्लीशन के बाद ही उनके सर्टिफिकेट पोस्ट होंगे। दिखा मैं दूंगी यहाँ पे लाइव में आप सबको कि आपके सर्टिफिकेट्स बन चुके हैं और हम उनको ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं। लेकिन जब तक कि आपकी तरफ से 100% मुझे अपनी गूगल शीट नहीं मिल जाती वापस, तब तक वो सर्टिफिकेट आपको अवार्ड नहीं होगा। ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट हो गई, आप मुझे खुद बताएंगी अपनी डेडलाइन कि आप 1 वीक में कर लेंगी, 3 दिन में कर लेंगी या 2 दिन में कर लेंगी। तो उतने टाइम के बाद मैं आपको आपकी गूगल शीट को वेरीफाई करके आई विल गिव यू द सर्टिफिकेट। ठीक है। इसके बाद जो भी पार्टिसिपेंट्स ऐसा हो जिसके कुछ भी टास्क रह जाए, कोशिश कीजिएगा कि 1 वीक से ज़्यादा का टाइम ना लें, क्योंकि आई टोटली बिलीव कि आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया और बहुत साथ साथ ही काम कंप्लीट रखा है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन में या 3 दिन में कंप्लीट कर लेंगे जो पेंडिंग होंगे। फिर उसके बाद इंशाल्लाह आप जैसे ही कंप्लीट कर लेंगे, आई गो विद योर सर्टिफिकेशन पोस्ट। ठीक है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे, मेडिसिन टाइम पे लें। और आजकल वैसे ही सैलाब की वजह से बहुत सारी चीज़ें हैं ना, स्पेशली हेल्थ बहुत डिस्टर्ब हो रही है सबकी। तो ये बारिशों और सैलाब में काफ़ी सारी चीज़ें और भी इफेक्ट हो रही हैं, तो उनका आप ख्याल रखिएगा। पारिशन, सबसे पहले हम जो एक ओवरव्यू ले लेते हैं सॉफ्टवेयर का, जो कि मैंने आपको सबसे पहले बताना था, और उसके बाद लास्ट में हमारे पास टाइम हुआ तो फिर मैं आपके साथ वो चीज़ शेयर कर देती हूँ। टास्क डन। अच्छा जी, कोडिंग के टास्क के बारे में जल्दी से अपडेट दे दे तो फिर मैं आपको सॉफ्टवेयर के बारे में गाइड करूँ, और फिर हम टेड टॉक देखेंगे और टेड टॉक के बाद हम ग्राफिक्स के बारे में सीखेंगे आज। ये ग्राफिक्स का कल कर लें, मैं इसको नोट डाउन कर लेती हूँ। आज हम सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मुझे मिस सॉफ्टवेयर पे ये प्रेजेंटेशन देनी थी। जी जी। मिस मरियम, ये जब ये हमने बैकग्राउंड चेंज करना है तो हम्म। एडजस्ट बैकग्राउंड एंड इफेक्ट्स पे जाना है पहले। हाँ जी, हाँ जी, जूम में उस पर जाएंगे, एडजस्ट बैकग्राउंड एंड इफेक्ट में, वहाँ इसको प्लस पे क्लिक करके ऐड करेंगे जैसे आपने पहला ऐड किया था, इस तरह से आपके ऐड हो जाएगा।
ओके, आई नोटेड डाउन कि ग्राफिक्स का मुझे कल काम कराना है, तो कल ये इंशाल्लाह हो जाएगा। आज हम सॉफ्टवेयर को एक्सप्लोर कर लेते हैं। अच्छा, ये आपने सिर्फ यहाँ पे नहीं लगाना, ये आपने अपनी स्टीम यार्ड में भी जब आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना, तो तब भी इसको इनेबल रखना है, ताकि आप आइंदा स्टीम यार्ड पे आप जितने सेशन करेंगे वो इसी बैकग्राउंड के साथ आपने करने हैं, ठीक है। दिस इज द ऑफिशियल वन। अब मैं सॉफ्टवेयर के बारे में बता दूं आप सबको। सबसे पहले तो जो मैंने कल लिंक भेजा था उसको क्लिक कर ले, और फिर मैं उसके बारे में अब आपको सारी चीज़ें गाइड कर देती हूँ कि किस तरह से आप इसको यूज़ करेंगे। ओके, ऐसा इंटरफेस जो होगा, जैसे ही वो जो लिंक मैंने आपके साथ शेयर किया था ग्रुप के अंदर, आपने उस पर क्लिक किया तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस जो होगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ठीक हो गया। अब सबसे पहले जैसे कि हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे आते हैं, तो हमें सबसे पहले अपने आप को वहाँ पे रजिस्टर करना होता है ना। तो हम यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक साइन अप फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये फॉर्म है, जिसमें आपने अपना फुल नेम ऐड करना है, अपना ईमेल एड्रेस ऐड करना है, ठीक है। जो ईमेल आप यूज़ कर रहे हैं वो ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे ऐड करेंगे। नेशनल आईडी कार्ड जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से, नादरा की तरफ से इशूड है, उस CNIC का नंबर ऐड करेंगे यहाँ पे। और इसके बाद ये जो रेफरल कोड है ना, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, दौलत सर ने शेयर किया है, वो भी मैं शेयर कर दूंगी। आप लोग उस कोड को यहाँ पे ऐड करके, और फिर मैं बताती हूँ उसका बोनस क्या मिलेगा आपको। उसके बाद पासवर्ड है, ये पासवर्ड आप चाहे तो उसी ईमेल का ऐड कर सकते हैं, और चाहे तो इसको आप एक नया पासवर्ड भी ऐड कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपने क्या जो है वो पासवर्ड यहाँ पे ऐड करना है। देन आपको उसको कंफर्म करना है, जो पासवर्ड ऊपर लिखा होगा सेम टू सेम यहाँ लिखना है। फ्री में आपको सिर्फ 7 डेज का एक्सेस मिलेगा, ठीक है। और 7 डेज के बाद आपको वो जो एक्सेस है वो आपको 7 दिन और तब दे सकते हैं जब आपके पास रेफरल कोड होगा, या आप अपने किसी दूसरे क्लास फेलो को या किसी और टीम फ्रेंड्स को या फैमिली में किसी को भी इंट्रोड्यूस करवा दे और उसको अपना रेफरल कोड दे दे, तो वो आपको 7 दिन और फ्री मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपको ऑलमोस्ट 14 डेज जो है वो फ्री मिल जाएंगे। जैसे ही आपने पूरा ये फिलअप कर लिया, फिलअप करने के बाद आप ऊपर ये साइन अप जो पॉपअप शो हो रहा होगा, इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद वो आपको कहेगा कि अब आप लॉगिन करें। जैसे ही आप लॉगिन पे आएंगे तो यहाँ पे आपको अपना ईमेल लिखना होगा जो कि आपने साइन अप के टाइम पे दिया, और फिर आपको अपना पासवर्ड लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा पासवर्ड आपको शो हो रहा है वेरी वीक। कोशिश कीजिएगा आप पासवर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग रखिएगा, और ये ग्रीन होना चाहिए। ये जो रेड होता है ना, ये अच्छा पासवर्ड नहीं होता। अब ये ग्रीन कब होगा कि अच्छा पासवर्ड जनरेट करने के लिए 8 डिजिट पासवर्ड होना चाहिए, जिसमें कैपिटल लेटर्स भी यूज़ करें, स्मॉल लेटर्स भी यूज़ करें, डिजिट्स भी यूज़ करें, और स्पेशल कैरेक्टर्स जो हैं उनको भी यूज़ करें। तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत सिक्योर्ड पासवर्ड जो है वो क्रिएट होता है, ठीक है। तो वो पासवर्ड आपने क्रिएट करना है, और फिर उसको अपने किसी डायरी में, जो कि आपने बाकी सारी ईमेल जहाँ पे नोट डाउन किए हुए हैं और अपने सारे पासवर्ड नोट डाउन किए हुए हैं, तो वहाँ इस सॉफ्टवेयर का नाम लिख के, और फिर उसके नीचे अपना ईमेल और उसके जो है अपनी आईडी भी वहाँ पे, आईडी और पासवर्ड दोनों ऐड कर लें, ताकि फिर जब भी आप लॉगिन करें तो आपको भूले नहीं। जब पहली बार हम साइन अप करेंगे और उसके बाद लॉगिन करेंगे, तो हम लॉगिन पे जैसे ही आएंगे ये दोनों हमने फिलअप कर लिया, और उसके बाद हम साइन इन टू डैशबोर्ड करेंगे, तो यहाँ पे एक छोटी सी पॉपअप मैसेज आएगा आपको, वांट टू सेव इट और नॉट नाउ। तो आप सेव पे अगर क्लिक कर देते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली आपका जो पासवर्ड है वो सेव कर देगा आपके कंप्यूटर के अंदर। तो फिर आप क्या करेंगे, जब भी आप अपने उस लिंक पे जो कि मैंने आपकी पिन ग्रुप में पिन कर दिया है उस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आपके पास लॉगिन मेरी तरह ओपन होगा, और फिर ईमेल और पासवर्ड आपको लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, वो लगा होगा, और आप डायरेक्ट जो है साइन इन टू डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। कुछ ऐसा इंटरफेस आपको शो होगा, ठीक है। जिसमें अभी जो आसिफ भाई उनका सवाल था कि मिस वहाँ पे तो टास्क 378 है, तो यस, ये 378 ही है। जो बुक आप कर रहे हैं उसका अब अपडेटेड वर्जन आ चुका है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया कि हम टाइम टू टाइम अपने करिकुलम को और चीज़ों को अपडेट करते रहते हैं, तो ये चीज़ें सारी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। आप चाहें तो उस बुक को भी ओवरव्यू करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे सबसे पहले हम इसको सिस्टम को देख लेते हैं कि हमारे पास सॉफ्टवेयर के अंदर क्या है। पहले मैं राइट साइड एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेबल है, तो इसको पहले देख लेते हैं। फिर लेफ्ट साइड में कुछ भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आप देख लेंगे, 1 मिनट में समझ आ जाएगी। सबसे पहले आपको यहाँ पे ये जो एआई असिस्टेंट है ना, ये नज़र आ रहा है। अब ये एआई असिस्टेंट आपके लिए क्या करेगा, एआई असिस्टेंट आपको हेल्प आउट करेगा। आपको किसी भी टास्क के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको कोई टास्क समझ में नहीं आ रहा कैसे एग्जीक्यूट करना है, तो आप यहाँ से इसको प्रॉम्प्ट दें, ये आपको पूरा गाइड कर देगा कि इस टास्क को कैसे एग्जीक्यूट करना है।
ये उन लोगों के लिए हमने स्पेशली डिज़ाइन किया है जो कि हमारे साथ कनेक्ट नहीं होना चाह रहे, जो 101 नहीं आ सकते और हमारी फ़ी अफोर्ड नहीं कर पा रहे। यहाँ पे आप सब जब आए थे तो आपने एक अच्छी खासी फ़ी पे की है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, बहुत सारे ऐसे टीचर्स होंगे जो कि चाह रहे होंगे नहीं हम इंडिपेंडेंटली इस कोर्स को कर लें, हमें 101 गाइड नहीं चाहिए। तो ये बहुत मिनिमल फीस के अंदर वो इंडिपेंडेंट लर्नर के तौर पे इस सॉफ्टवेयर को जो है वो लॉग इन करेंगे और प्रीमियम वर्जन लेके अपना जो लेवल 1 का सर्टिफिकेट है वो अचीव कर सकते हैं। वो ये सारे टास्क पूरे करेंगे और उसके बाद ऑटो जनरेटेड ये सिस्टम ही उनके लिए एक सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो सर्टिफिकेट जनरेट करेगा जिसमें रेहान सर के सिग्नेचर होंगे और उनको ये सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए भी उनको फीस पे करनी पड़ेगी अगर प्रीमियम वर्जन लेना है, पूरी बुक कंप्लीट करनी है तो। ठीक है, और क्योंकि देखिए हमने बड़ी मेहनत से ये सारी सिस्टम को बनाया है, हमने बहुत दिन रात लगाया है इस सारी चीज़ पे, तो हम किसी को मुफ्त में तो कुछ भी नहीं देने वाले। ये तो बिल्कुल स्ट्रेट बात है, और पाकिस्तानी या कोई भी इंसान मुफ्त की किसी चीज़ की भी कदर नहीं करता। तो बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो कि सिस्टम को शुरू तो करते हैं, एक हफ्ते के बाद फिर वो कहते हैं कि नहीं नहीं हमें ये करना ही नहीं था। तो भाई अपना टाइम भी सेव रखो, हमारा टाइम भी सेव रखो। एक वीक के लिए आपके पास फ्री की ऑप्शन है, एक वीक इसको टेस्ट करो, इसको समझो, अगर आपको लगता है कि आपके साथ अलाइन होता है आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, तो उसके बाद आप प्रीमियम के लिए अप्लाई कर दो और आप हमें कॉल करें और हमसे इसका प्रीमियम वर्जन लेने के लिए पे कर दें। और फिर जब आप पे करते हैं फिर आप डेफिनेटली बाय हुक और क्रुक उसको कंप्लीट कर ही लेते हैं। अच्छा, दूसरा इसका फ़ायदा ये होगा जो सेल्फ ड्रिवन लर्नर्स होंगे, ज़रूरी नहीं है कि वो 2 महीने में ही कंप्लीट करें। जब हम अपनी पेस पे काम करते हैं तो समटाइम हम बहुत डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, हम काम करना छोड़ देते हैं। समटाइम हम बहुत मोटिवेटेड होते हैं तो बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं। तो ये उनकी अपनी एक पेस होगी, तो वो चाहे तो 3 महीने में कंप्लीट कर लें, चाहे 2.5 महीने में कंप्लीट करें, चाहे 4 महीने में कंप्लीट करें। तो उनको हमारी तरफ से कोई प्रेशर नहीं होगा। अभी आप में से बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को फील हो रहा होगा कि मरियम बहुत स्ट्रिक्ट हो रही है, इतने थोड़े टाइम में हम कैसे टास्क कंप्लीट करें, मेरे टास्क बहुत ज़्यादा रहते हैं एंड ऑल दैट ना। तो फिर उनको ये प्रेशर नहीं होगा, क्योंकि हमें तो वाइंड अप करना है ना 2 महीने को, उनको तो 2 महीने में वाइंड अप नहीं करना। वो 3 महीने में कर ले अपनी पेस के साथ, वो 2 महीने में कर ले अपनी पेस के साथ, वो उनकी चॉइस होगी। तो ये भी एक उनको फायदा रहेगा। अब ये उनके लिए ही एआई असिस्टेंट यहाँ पे ऐड किया गया था, ताकि हम उनको 101 गाइड नहीं करेंगे, लेकिन ये एआई असिस्टेंट उनको गाइड कर देगा कि ये टास्क कैसे करना है। जैसे पहला ही टास्क लिखा हुआ है, डिस्कस हाउ टू मास्टर टाइम मैनेजमेंट इन डेली लाइफ। डिस्क्रिप्शन है उसकी, 10 मिनट कॉन्वर्सेशन विद कॉल एनी एंड पोस्ट वीडियो ऑन सोशल मीडिया। अब वो यहाँ पे लिख सकता है, हाउ कैन आई गो फॉर द टास्क 1, प्लीज गाइड मी। अब जैसे ही मैंने ये प्रॉम्प्ट दिया, अब ये एआई असिस्टेंट जो है इस सारे प्रॉम्प्ट को प्रोसेस करेगा और फिर उसके रिगार्डिंग जो है वो मुझे इन्फॉर्मेशन शेयर कर देगा। सी, अब जैसे ही मैंने उसको लिखा अब ये मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन बता रहा है। ठीक है भाई, बहुत ही लंबी एक्सप्लेनेशन दे दिया भाई साहब ने। ओके, अब वो बता रहा है, ओके लेट्स ब्रेक डाउन टास्क 1 डे 1, डिस्कस हाउ टू मास्टर टाइम मैनेजमेंट इन डेली लाइफ लेवल 1। इट लुक्स like this involved a conversation with Colony and then sharing video on social media. Here's how you can approach it step by step. Number 1, understand the goal. The core objective is to have a conversation about time management and share it. This task is designed to get you comfortable talking about important topics on camera and sharing your insights. It's all about practicing communication skills, which are crucial for an AI teacher. ठीक है, अब नंबर 2 पे वो बता रहा है कि उसके स्टेप्स क्या क्या थे। प्रिपेयर फॉर योर कन्वर्सेशन विद कॉल एनी। हु इज कॉल एनी? अब वो बता रहा है कि कॉल एनी क्या है। दिस लाइकली रेफर्स टू अ स्पेसिफिक पर्सन विद इन द एआई टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। हु डू यू हैव her contact information? If not, clarify with your program organizers who you need to call. Brainstorm time management tip. Before you call, think about 3 to 5 practical time management tips you can discuss. Here are some ideas to get you started. Prioritization. Explain the importance of identifying and focusing on the important task first. The Eisenhower matrix, urgent, important, can be helpful.
To-do list, talk about the benefits of creating and using to-do lists, mentioning breaking down large tasks into smaller, manageable steps. Time blocking, describe how to schedule specific blocks of time for specific tasks. Eliminating distractions, discuss common distractions, social media, email, and strategies to minimize them. Setting realistic goals, emphasize the importance of setting achievable goals to avoid feeling overwhelmed. Using apps and tools. Briefly mentioned any time management tools for apps you find helpful. Plan a structure. Think about how you want the conversation to flow. A simple structure could be introduction, introduce yourself, briefly explain the topic of time management, then discuss, share your time management question, and then summarize all the questions to find this conclusion. Equipment, make sure your microphone and camera are working properly before you make the call. Have the conversation, be professional, be polite, respectful, and engage with any in a friendly manner. Be clear and concise. Express your ideas clearly and avoid rambling. Listen actively, pay attention to what any says, and respond thoughtfully. This isn't just about you talking, it's conversation. Keep it concise. ये सारे पॉइंट्स उसने आपके साथ शेयर कर दिए। आखिर में वो आपको गाइड करेगा कि रिकॉर्ड कैसे करना है, फिर वो आपको बताएगा कि आप जूम पे चले जाएं या स्ट्रीमयार्ड पे चले जाएं। जैसे अभी इसने यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में आपको गाइड किया है कि जूम पे या किसी भी दूसरी प्लेटफॉर्म के थ्रू आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं और फिर उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है। 10 मिनट्स करने के बाद कैप्शंस ऐड करने हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन होती है उसको ऐड करें। फिर उसके बाद आप चूज़ करेंगे किस किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपने कंफर्टेबली पोस्ट करना है। उसमें फेसबुक है, लिंक्डइन है, ट्विटर है। आप एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिखें और फिर हैशटैग्स यूज़ करें और लास्ट में जो फीडबैक है उसको ऐड करें। और ये सारी टिप्स उसने एक टास्क के बारे में गाइड किया। अब ये देखिए इतनी डिटेल में अगर वो आपको गाइड कर रहा है तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि किसी को 101 गाइडलाइन की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से वो पार्टिसिपेंट जो कि खुद ये इंडिपेंडेंट नहीं करना चाह रहे हैं तो वो ये सारी एआई असिस्टेंट से हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद राइट साइड में आपको ओवरऑल प्रोग्रेस के एक बार नज़र आ रही होगी। यहाँ पे वो आपको एक बार के थ्रू बताएगा कि आप कितनी परसेंटेज अब तक के कंप्लीट हो चुकी है। अप्रूव्ड एंड पेंडिंग टास्क का क्या मतलब है? अप्रूव्ड टास्क का मतलब ये होगा कि हमारी सॉफ्टवेयर के पीछे एक टीम बैठी हुई है जो कि आपकी डे टू डे बेस पे आपके टास्क को एनालिसिस करेगी, वेरीफाई करेगी। आपको सर्टिफिकेट ऐसे नहीं इशू हो जाएगा, उन टास्क की वेरिफिकेशन होगी बाकायदा और वो रोज़ाना चेक करेंगे। चेक करने के बाद आपके टास्क को अप्रूव करेंगे। अगर वो ये जो सर्टन पैरामीटर्स एआई असिस्टेंट ने शेयर किए हैं ये फुलफिल होते हैं, दोज टास्क विल बी अप्रूव्ड, तो वो आपके अप्रूव टास्क में काउंट हो जाएंगे। और जो टास्क रिजेक्ट हो जाएंगे वो पेंडिंग में चले जाएंगे और वो दोबारा से उनको कंप्लीट करने होंगे। जब तक कि वो कंप्लीट नहीं कर लेता पार्टिसिपेंट तब तक के उसको सर्टिफिकेट इशू नहीं होगा। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये आपको बताता है ये टोटल टास्क है। ये लेवल 1 और लेवल 2 के दोनों के मिलाव के टास्क बता रहा है, क्योंकि जितने टास्क यहाँ बुक्स दोनों ऐड हो चुके हैं उनके टास्क आपको बता रहा है, इसलिए इस पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सोशल मीडिया टास्क एनालिसिस है। ये आपके पास पाई चार्ट हमने बचपन में सबने पढ़ा हुआ है मैथ्स में, तो ये एक पाई चार्ट की सूरत में आपको गाइड करेगा कि आपने कितने कितने टास्क किस किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर दिए। लेट्स सपोज आप में से किसी का लिंक्डइन बैन है तो उसके ज़्यादा टास्क होंगे वो फेसबुक और यूट्यूब पे शो होंगे। किसी का फेसबुक बैन है वो यूट्यूब और लिंक्डइन पे करेगा। किसी के दोनों बैन है तो सिर्फ यूट्यूब का ही सारा का सारा चार्ट शो होगा। तो इससे ये सामने वाले को एनालिसिस हो जाएगा कि अच्छा जो पार्टिसिपेंट है वो फेसबुक और लिंक्डइन पे काम ही नहीं कर रहा, तो ऑटोमेटिकली उसका सर्टिफिकेट भी जनरेट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप फेसबुक, लिंक्डइन और यूट्यूब के अलावा जैसे इंस्टाग्राम पे भी आप सब अपने टास्क अपलोड कर रहे हैं, ट्विच अकाउंट पे करते हैं, टिकटॉक पे करते हैं, तो वो सारे भी आप यहाँ पे लिंक्स ऐड कर सकते हैं। तो उसका वो प्रॉपर ग्राफिकल मैनर में भी आपको आपकी परफॉर्मेंस है वो आपको शो होती रहेगी। उसके बाद यहाँ पे फेसबुक के कितने टास्क होंगे वो आपको नजर आ जाएंगे, यूट्यूब के अलग नजर आएंगे, लिंक्डइन के अलग नजर आएंगे और दूसरे प्लेटफॉर्म्स के अलग नजर आएंगे। ये टास्क समरी है जो कि फिर से आपको दोबारा शो करेगी कि कितने टास्क अब तक के कंप्लीट हो चुके हैं आपके टोटल और सोशल मीडिया के रेशोज क्या हैं आपके पास। ये रेफरल डैशबोर्ड है। यहाँ पे जो है ये आपको बता रहा है कि आपने फ्रेंड और फैमिली को किसी को इनवाइट करना है तो आप अपना अपना रेफरल कोड शेयर कर सकते हैं। जब आप इसको लॉगिन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे आपके पास ये दो बुक्स आपको शो हो रही हैं। गाइड बुक 1 है जो कि आपके पास अभी लेवल 1 की, जैसे मैंने बताया कि बुक अपग्रेड हो गई, ये वो वाली बुक है। और ये जो बुक है लेवल 2 की बुक है जो कि बुक 2 के नाम से यहाँ पे अपलोडेड है, तो आप उसको यहाँ से भी डाउनलोड करके उसको सारा पढ़ सकते हैं।
ठीक हो गया। और वो कह रहे हैं कि अभी तक आपने अपना जर्नी स्टार्ट ही नहीं किया रजिस्टर्ड एक्टिविटी में। अब हम बात कर लेते हैं ये लेफ्ट साइड की। लेफ्ट साइड में क्या है कि जैसे ही हम आते हैं लेवल 1 में, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लेवल 1 के टास्क का काउंटडाउन मिलता है, फिर लेवल 2 के टास्क का काउंटडाउन मिलता है, और उसके बाद यहाँ पे पेंडिंग और अप्रूव टास्क जो ऑलरेडी हम यहाँ पे देख चुके हैं वो आपको यहाँ पे भी नजर आते रहेंगे। ये स्कोर बोर्ड है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका रिपोर्ट कार्ड जनरेट होगा, और यहाँ पे आपको पता चलेगा अच्छा आपके कितने टास्क पेंडिंग में शो हो रहे हैं ये वाले, और अप्रूव्ड कितने हैं 1, और रिजेक्टेड कितने हैं 0। फिर उसके बाद बाकी पार्टिसिपेंट्स भी अपना अब मतलब ओवरऑल ये अभी मेरे पास तो प्रिंसिपल डैशबोर्ड है जिसमें मुझे सबके नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब आप लोग करेंगे तो आप सबको अपना अपना ही स्कोर बोर्ड नजर आएगा, आप दूसरे के किसी का नहीं देख सकते। ठीक है, ये आप प्रॉबेबली देख भी पाएंगे। ओ माय गॉड, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आ गए भाई स्कोर बोर्ड में तो। एनी हाउ, उसके बाद हम वापस चलते हैं तो हमारे पास यहाँ पे लेवल 1 के टास्क में आ जाते हैं, तो अब हमारे पास यहाँ पे लेवल 1 के टास्क शो हो रहे हैं। ठीक है, ये हमारे पास टास्क की जो एग्जीक्यूशन है, टॉपिक है, टाइटल है वो है, ये उसकी डिस्क्रिप्शन है कि आपने क्या करना है और किस तरह से करना है। उसके बाद ये डे 1 लिखा हुआ है, उसके बाद यह लिखा हुआ है आपने करना किसके साथ है वो चीज़। ये सबमिट टास्क पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक छोटी सी डायलॉग बॉक्स एक और नज़र आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है, इसमें आपने यहाँ पे लगाना है फेसबुक का लिंक। ठीक है, यहाँ पे आपने लगाना है यूट्यूब का लिंक, यहाँ पे आपने लगाना है लिंक्डइन का लिंक। मैंने तो कोई लगाया नहीं, ये लग गए थे। और लास्ट में जाके अगर आपने कोई एडिशनल नोट ऐड करना है तो यहाँ पे आप अपना कोई कमेंट भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कोई चैलेंज आया, कोई प्रॉब्लम आई, तो वो भी आप जो है वो सॉफ्टवेयर टीम को जो है कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं ताकि वो आपके प्रॉब्लम को फिक्स कर सके या आपका सोल्यूशन दे सके, तो आप यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं। सबमिट टास्क पे हमने क्लिक किया। एक मिनट में, अच्छा, जैसे हमने सबमिट टास्क पे क्लिक किया तो वो आपसे कह रहा है कि आप इस टास्क को सबमिट करें और ओके कर दे तो आपका टास्क सबमिट हो जाएगा। इस तरह से आपका पहला टास्क जो है वो यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। जैसे ही टास्क सबमिट हो जाएगा, अब ये आप देख सकते हैं कि आपके जो लिंक्स हैं वो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं कि आपने कौन कौन से लिंक्स लगाए हैं, वो तीनों के तीनों लिंक्स आपके पास यहाँ पे आ गए। अब ये पेंडिंग अप्रूवल है, वो जो सॉफ्टवेयर टीम बैठी हुई है उसको ये जो टास्क है इनको अप्रूव करना है। अगर वो अप्रूव कर देते हैं तो ये ग्रीन हो जाएगा, और आपका यहाँ पे अप्रूव्ड टास्क के अंदर यहाँ पे ये जो पेंडिंग में लिखा आ रहा है ना, अब ये पेंडिंग में मेरा 1 हो गया कि मुझे वहां से अभी तक कोई अप्रूवल नहीं मिला। तो ये अगर अप्रूव हो जाता तो ये वहां आ जाएगा, यहाँ पर पेंडिंग में 0 हो जाएगा। तो इस तरह आप अपने अप टू डे 7 अपने टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही अभी आप ये देख लें कि राइट साइड पे मेरी ये जो पाई चार्ट था उसने भी मेरा ग्राफ शो कर दिया है कि अभी तक मैंने 3 टास्क अपलोड किए हैं। यूट्यूब पे कितने किए हैं, फेसबुक पे कितने किए हैं, लिंक्डइन पे कितने किए हैं, और नीचे देखिएगा तो उनकी परसेंटेज भी मुझे शो हो गई। उसके बाद नीचे वो डिजिटल फॉर्म में भी मुझे शो हो रहा है। अब नीचे आएंगे तो समरी में भी मुझे ये शो कर देगा। तो इस तरह से ये चीज़ें अब अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से अल्लाह ताला मज़ीद इसको तरक्कियां दे, ग्रो करे। ये सिस्टम चैनलाइज हो रहा है और ये अब बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएगी हमारे एंड पे भी, बीइंग अ फैसिलिटेटर्स, और पार्टिसिपेंट्स के एंड पे भी बीइंग पार्टिसिपेंट्स ऑफ द ट्रेनिंग। अब किस किस का कोई सवाल है तो प्लीज मुझे बताइएगा। जी मिस गुलशान। मिस मरियम, यहाँ पे जैसे ये सारे के सारे शो हो रहे हैं कि आपका आप लिंक पेस्ट करें, पाई चार्ट में शो होगी चीजें। तो अप्रूवल के लिए तो जो है वो मस्ट हो गया कि आपने इन तीनों पे करना ही करना है। अगर मेरे जैसा बंदा जो है वो कहे कि नहीं, ये जो अब डेली बेसिस पे क्लास की बजाय ये इजी है कि भले ये इसको मैं 3 महीने में भी कर सकती हूँ। इज इट पॉसिबल? ये है ना पॉसिबिलिटी कि आपको बिल्कुल 3 महीने मैंने में ये बताया ना आपको कि जब आप सेल्फ क्लास ड्रिवन पर क्लास लर्नर हैं कर? तो आप 3 महीने में करें या 4 में करें, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। आपको फिर उसी तरह से जैसे आपका पेस होगा वो आप खुद कर रहे हैं ना, तो आपकी चॉइस है, आप जब मर्जी करके ले ले अपना सर्टिफिकेट। आप एक फीस पे करेंगे सॉफ्टवेयर की, वो आप सिर्फ सॉफ्टवेयर की पे कर रहे हैं। लेकिन जो हम हमसे पढ़ेगा ना, जो हमारे पास आएगा 2 घंटे क्लास के देगा, तो वो हमारी फीस भी देगा, क्योंकि भाई हम भी तो उसको कंसल्टेशन दे रहे हैं, उसको हेल्प कर रहे हैं, उसको उसको अकाउंटेबल कर रहे हैं कि वो 2 महीने के अंदर अंदर सारी चीजें कवर कर जाए, इसलिए। और मैं अब अपनी बात कर रही हूँ कि जैसे मेरा लिंक्डइन जो स्टिल बैन है, वो स्टार्ट में अब जो भी नई कोई एहतियात नहीं हुई या मुझे उसका पता नहीं था स्टार्टिंग में ना, मुझे नहीं पता था या कोई उस बात वक्त नहीं। वो अब तक बैन है। तो अगर मैं हाँ तो इसको उस इस तरह से मैं इसको यूज करने की ट्राई करती हूँ तो हम्म मेरा तो कोई भी टास्क जो है वो अप्रूव होगा ही नहीं।
अच्छा, उसका ये है कि वो जो नोट रखा है ना हमने, जो कमेंट सेक्शन रखा हुआ है, टास्क अपलोड करते हुए एक कमेंट सेक्शन बनाया ना मैंने, और जहाँ मैंने बताया कि आप अपना फीडबैक लिखेंगे कि आपको चैलेंज आया, आपका टास्क कंप्लीट क्यों नहीं हुआ, या आपके टास्क को कंप्लीट होते हुए आपने ये चैलेंज फेस किया, ताकि और वो वहाँ से आपको सॉफ्टवेयर वाली टीम गाइड कर सके थ्रू दिस कमेंट सेक्शन, कि वो भी फिर कमेंट सेक्शन में ही आपको कमेंट करेंगे। उसका ये है कि आप वहीं पे लिखेंगे ड्यू टू सर्टन रीजन, वो रीजन भी आप बता सकते हैं कि इस रीजन की वजह से मेरा लिंक्डइन या फेसबुक बैन है फ्रॉम दिस डेट। तो वो ऑटोमेटिकली इसको कंसीडर करेंगे, और वो आपको हर रोज उनको मैसेज करना पड़ेगा, तो सॉफ्टवेयर टीम आपका वो टास्क अप्रूव करती जाएगी कि ठीक है जी इनका बैन है। या वो आपको गाइड कर देंगे कि अच्छा आप एक और लिंक्डइन या फेसबुक पे या कोई दूसरा जो भी चैनल आपका मिस हो गया उसको दोबारा क्रिएट कर ले और उस पर टास्क अपलोड करना शुरू कर दे। तो जो भी उसकी ऑल्टरनेट हुआ वो उस कमेंट के थ्रू आपको आपकी जो 101 जिसे कहते हैं ना, कि जो एक थ्रू मैसेजेस, वो शायद आपको गाइड करना शुरू कर दे। तो इस अच्छा तरह से मेरा आपको वो आपको गाइड कर देंगे। मेरा तकरीबन सवा महीने या 1.5 महीना हो गया है कि मेरा जो है वो बैन ही है। तो क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि मैं नया बना लूं, या कोई ऐसा रास्ता जिसकी जिससे ये मुमकिन हो सके कि वो ओपन हो सकता है? अच्छा, ऐसा है मिस गुलशान के जो लिंक्डइन वाले हैं ना, ये अपनी मर्जी के मालिक हैं, इन पर कोई पता नहीं चलता। हमारे पास हमारी एक फेलो फैसिलिटेटर हैं, अब तो माशाल्लाह वो वाइस प्रिंसिपल हैं, उनका लिंक्डइन 3 महीने बैन रखा इन्होंने, और 3 महीने बाद जाके उसको अनबैन किया था। ठीक है। एक ऐसे हमारे पास बच्चे हैं जिन्होंने 5-5 लिंक्डइन की आईडीज बनाई, और उनका 5-5 बार जो है वो 2 हफ्ते के बाद बैन हो जाता था। तो ये लिंक्डइन की अभी तक बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं है। ठीक है। कल एक सेशन है मेरा, जिसमें मुझे मैं इनवाइट किया है इसी सोशल मीडिया मैनेजमेंट के कुछ लोगों को। तो जैसे कुछ चीज़ें उनकी उनसे मुझे पता चलती हैं तो आई शेयर विद यू गाइस कि हम किस तरह से इन चीज़ों को लेके चल सकते हैं और क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। और अगर नहीं हुई तो फिर मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप एक नया लिंक्डइन ज़रूर बना लें। ठीक है। अच्छा, जो अगर हम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो उसका क्या तरीकाकार है, कि मतलब क्या कितनी उसकी फीस जो है वो पे करनी पड़ेगी? कोई आइडिया है आपको, या $20। वो सब्जेक्ट से ही पता चलेगा? $20। हाँ, वो पाकिस्तानी 6,000 रुपीज़ बनते हैं, 6 to 7,000 सॉफ्टवेयर की फीस। जी जी आसिफ भाई, अपना सवाल बताइएगा। ये फेसबुक पे लाइव हुई कि नहीं? मैम इसमें इंस्टाग्राम का ऑप्शन नहीं है, इंस्टाग्राम में टास्क नहीं करने हैं? नहीं, सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्टाग्राम का ऑप्शन नहीं है। अच्छा। तो यहाँ पे अगर किसी को वैसे आप गाइडेंस करते जाएंगे तो चाहिए अच्छी बात कि है। ये टास्क कैसे करने हैं, कॉलोनी से बात कैसे करनी है, तो वो मेरा भाई आई जूम एआई को से कैसे लेगा। चलाना है, उनको अगर गाइडेंस आपको मिलेगी, उनको सपोर्ट मिलेगी, या बस वो खुद ही करे? फॉर नाउ जो लास्ट वेबिनार हमने किया था संडे को, उसमें तो ये अनाउंस किया था कि वंस इन अ मंथ हम लाजमी, जो हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू पार्टिसिपेंट्स हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हम वंस इन अ मंथ उनको जो है वो ज़रूर उनके प्रॉब्लम्स उनके चैलेंजेस सुनने के लिए वेबिनार रखेंगे। लेकिन ये अभी के लिए है। अगर हमारी कम्युनिटी बहुत बढ़ जाती है तो मुझे नहीं पता फिर क्या होगा, या फॉर आफ्टर 2-3 मंथ्स क्या इंस्ट्रक्शन आ जाए, नहीं पता। अभी के लिए तो ये ज़रूर है कि वो कम्युनिटी जो हमारी सॉफ्टवेयर के थ्रू हमें ज्वाइन कर रही है, अगर वो हमें ज्वाइन करती है, उनके चैलेंजेस आते हैं, उनकी क्यूरीज आती हैं, तो डेफिनेटली विल गो फॉर दैट। और हम बिल्कुल उनसे वंस इन अ मंथ मैं बार बार कह रही हूँ कि महीने में सिर्फ एक सेशन ही रखा जाएगा, क्योंकि बहुत कुछ है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और उनका फिर हमने इस संडे को सेशन किया, और संडे भी वर्किंग कंसिडर हुआ, हम संडे को भी फ्री नहीं थे। सो हमें फिर ये चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं ना, फिर हमें अपना अपना टाइम कब मिलेगा। तो लेट्स सी क्या होता है। जी लैला, अपना सवाल बताइएगा। जी मैम, मुझे ये वैसे तो थोड़ा मुझे फीलिंग्स आ रही थी, बट मैं आपसे तसल्ली करना चाह रही थी कि शीट में यहाँ जो अभी आपने एक सॉफ्टवेयर दिखाया है, उसके डैशबोर्ड पे लिंक आपने ना अपने पोस्ट किए हैं, वो जो आप कह रही थी खुद से हो रहे हैं, इसका मतलब है गूगल शीट नहीं होगी, ये हमारी गूगल शीट भी जी होगी? जी, अगर अब हाँ, अब खत्म हो गया, गूगल शीट खत्म हो गया, ठीक है। बैच 12 से हम ठीक है ये मैम। इंट्रोड्यूस करा चुके हैं, ये आप लोगों को इसलिए बताया है ताकि अब आप लोग लेवल 2 से इसको यूज़ करेंगे। तो जो थैंक यू पार्टिसिपेंट्स मैम। लेवल 2 में इंटरेस्टेड हैं, वो 101 गाइडलाइन लेना चाह रहे हैं तो भी वो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। जो पार्टिसिपेंट्स सेल्फ ड्रिवर लर्नर बनना चाह रहे हैं, अपने पेस पे रहते हुए काम करना चाह रहे हैं, तो वो भी ये सॉफ्टवेयर के थ्रू ही ज्वाइन करेंगे।
ठीक है, ओके मैंने बताया मैम, था ना, थैंक चीज़ें यू मैम। आहिस्ता आहिस्ता हम सिस्टमाइज करने जा रहे हैं, एनालाइज करने जा रहे हैं, ताकि सबकी ज़िंदगी आसान हो जाए। जी शाल। मैम, जैसा कि आप बता रही हैं कि मैम की लिंक्डइन की आईडी बंद है, ठीक है। वैसे मेरा भी फेसबुक अकाउंट रिस्ट्रिक्ट है, तो ऐसा हो सकता है कि मैं लाइक जब लेवल 2 की तरफ जाऊँ तो मैं नया अकाउंट बना लूँ फेसबुक का। मेरी बहन अभी वेट कर लो, मैं बार बार ये कह रही हूँ, नया अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद, लेकिन जब आप करोगे तो फिर देख लेंगे, फिर तब की तब देखी जाएगी ना क्या करना है हमें। ठीक है। जी मिस गुलशान। आपका माइक म्यूट है अगर आप बोल रही हैं तो। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। मैं बोलूँ मैम? हाँ मुझे लगे, अच्छा उन्होंने माइक अनम्यूट कर लिया, माजरत आजम भाई, बस 1 मिनट दे दे, उनका माइक पहले जी अनम्यूट हो जी गया। जी जी, कोई नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी मिस गुलशान। एक तो मिस मैंने पूछना था कि अगर हम इस तरह से करते हैं, जैसे मतलब मैं वर्किंग वुमेन हूँ, मेरे लिए मैं हो गई, मिस लुबना हो गई, तो मुझे लगता है हमारे लिए तो ये ज्यादा इजी है कि हम ये इस तरह से क्लास की बजाय जो ये हम अपने जो है वो फेस फेस इसको हम कर लें। तो इसका जो प्रोसीजर है ये पेमेंट का, वो क्या होगा, किस तरह से इसकी पेमेंट हम कर सकते हैं? और दूसरा, मैंने मिस लुबना से और मिस इरम से कंफर्म करना था कि ग्रुप में मुझे बताइएगा जरूर कि आपका क्या प्रोग्राम है और आगे आपने किस तरह से कंटिन्यू करना है, आपने क्लास किस तरह से लेनी है, वो जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि फिर मैं भी देखूंगी मैंने क्या करना है। जी जी, वो तो आप तीनों की अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो आप चाहे तो एक सेशन कर ले जूम का, स्ट्रीम यार्ड का, वहाँ बैठ के ब्रेन स्टॉर्मिंग कर ले। जो जहाँ तक रही बात, ये सॉफ्टवेयर कैसे मिलेगा, वो मैंने अभी आपके साथ जैसे ये बात दर्ज की है कि अभी आप इस सिस्टम अभी सॉफ्टवेयर के लिए परेशान ना हो। संडे ये सैटरडे को बैठ के इसको एक्सप्लोर कीजिएगा, जब आप अपना लेवल 1 कंप्लीट कर लें फिर इस पे आए, और फिर बैठ के लेवल 2 को एक्सप्लोर करें। लेवल 1 को छोड़ दें, यू गाइज ऑलरेडी डन विद दैट, तो अब आपको लेवल 1 के लिए कुछ नहीं करना। तो आप लेवल 2 पे जाएं, लेवल 2 की बुक डाउनलोड करें, लेवल 2 के फर्स्ट एक वीक का जो ट्रायल पीरियड है उसको लेवल 2 के लिए यूज़ करें, लेवल 1 पे उसको वेस्ट ना करें। मेरा सजेशन ये होगा आप सबको, बाकी आप सबकी अपनी चॉइस है, आप लेवल 1 को भी एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं तो कर लें। बुक आपके पास साइड पे अवेलेबल है, चाहे तो वो बुक डाउनलोड कर लें, उस बुक में इस बुक में क्या डिफरेंस है वो भी आप देख सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो वो अगर आप बुक डाउनलोड कर लें आज, आज बुक डाउनलोड कर लें और कल उस बुक के बारे में कुछ पूछना चाहें तो वो भी मैं गाइड कर दूंगी, उस बुक में और आपकी बुक में क्या डिफरेंस है। दूसरी बात, लेवल 2 को जब आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि 1 हफ्ते का टास्क आप करके देख लेंगे, इसमें क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, किस तरह से करनी है, वो चीज़ें भी आपको पता चल जाएंगी। तीसरी बात ये आ जाएगी कि आप पूछना ये चाह रहे हैं कि अब 1 हफ्ते के बाद हमें कहाँ से इसकी जो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मिलेगी, तो आपने एडमिशन ब्रांच में जे प्रकार से रब्ता करना है और उनको बताना है कि आप एज अ सेल्फ ड्रिवन लर्नर इसको यूज़ करेंगे, आप 101 गाइडलाइन नहीं लेंगे। अगर आप 101 गाइडलाइन लेना चाह रहे हैं, फिर आप उनसे ये पूछेंगे कि लेवल 2 की क्लास कब आप लोग स्टार्ट करें हैं, जो कि हम इनरोल होना चाह रहे हैं। तो वो पार्टिसिपेंट्स वो सेपरेट कर लेंगे और फिर वो आपको ग्रुप के थ्रू कम्युनिकेट करते जाएंगे कि हम कब और किस तरह से ये क्लास स्टार्ट करेंगे। ये 2 वेज हैं इसके। अच्छा, इसमें जैसे आप लेवल 2 कर रही है, उसमें कोडिंग के कुछ टास्क हैं, और ये तो है, ये जो टास्क है ये अब ये डेली बेसिस पे टफ भी होते जाएंगे। तो अगर बिल्कुल। अगर एक बंदा जो है वो अपने बिहाफ पे करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए कोडिंग करना मुश्किल नहीं हो जाएगा कि वो सेल्फ हेल्प पे कर रहा है? मिस सोलत, आपकी कोई स्क्रीन शेयर हो गया, प्लीज़ इसको स्टॉप कर ले। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो मुश्किल होगी। देखिए, यही बात तो है ना कि अगर आपको कोई चीज़ ऐसी लग रही है तो वो एआई असिस्टेंट है ना आपको हेल्प आउट करने के लिए, वो जो एआई असिस्टेंट जिसने अभी एक छोटे से टास्क को इतनी डिटेल में बता दिया है कि आपको हर चीज़ क्लियर होगी। और अगर फिर भी समझ नहीं आए तो उसी को कॉपी करके चैट जीपीटी पे जाके पूछ ले। आप वेज आपको खुद ढूंढने हैं ना, जब हम हर चीज़ इंडिपेंडेंटली करना चाहते हैं, फिर हम इंडिपेंडेंट चीज़ों को करने के ये चीज़ें बार बार गलतियाँ करके सीखते हैं कैसे करते हैं इंडिपेंडेंट। अच्छा मिस मरियम, ये जब लेवल 2 आप लोग करवाएंगे, जब आप इस तरह से क्लास की सूरत में करवाएंगे, तो हम्म। ऑब्वियसली आपका कोई ना कोई मेंटोर भी होगा जो इसको करवाएगा और बाकी लोग करेंगे। तो हम्म। ये इस तरह से फिर क्लासेस जो है ना, ये लेवल 2 की क्लासेस क्या वो भी अपलोड होंगी यूट्यूब पे, हाँ जी फेसबुक बिल्कुल, पे? वो आपको फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हर जगह मिल जाएंगी। जी। जी आजम भाई, मेरी टेड टॉक रहेगी आज की। जी आजम भाई। जी जी, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम,
वैसे मतलब एक तो मैं फीडबैक जो है वो थोड़ा सा अगर बात करना चाहूँ इस हाँ जी, हाँ जी, सॉफ्टवेयर हाँ के जी, बारे जी में, जी, प्लीज प्लीज। तो मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगा एक न्यू लर्नर के लिए। ये एडवांस लर्नर के लिए जो है वो तो मुझे सूटेबल लगा कि इंग्लिश जो है वो इसके अंदर बहुत डिटेल के अंदर जो है वो किसी भी बंदे को जो है वो समझनी पड़ेगी, अगर कोई लेवल 1 का कोई स्टूडेंट जो है वो इसको सब्सक्राइब करने की कोशिश करता है और अगर इससे सीखने की कोशिश करता है, और वीडियो गाइड इसके अंदर अगर हो साथ तो वो बहुत अच्छा होगा कि जो है वो। लेकिन वो फिर हम्म। मैडम अभी गुलशान ने जो है वो जैसे बात की कि फेसबुक के ऊपर जैसे वीडियोस जो है वो अपलोड होंगे, तो उससे जो है वो हो सकता है कि लोग देखिए, जो है। हमने वीडियो गाइड के लिए तो इसीलिए तो हमने यूट्यूब और फेसबुक को ओपन रखा हुआ है ना। जो जाए और जहाँ वहां से जाके उसका पैरेलल में वो उसको देख सकता है ना, इसके लिए। जी ये फिर अभी ये जो बात हुई ना मैम, तो उससे जो है वो थोड़ा सा क्लियर हुआ। बाकी मुझे तो मैम वही जो हमारा ये जो कन्वेंशनल सिस्टम है ना मैम, ये ठीक है। मुझे ये समझ में आता है कि अच्छा अच्छा, ठीक। चलिए, ये तो आपकी तो बात है उसमें ना। ये, बहुत सारे लोग हाँ ऐसे होते हैं मतलब जो कि उसमें ये सेल्फ है कि पेस्ड 1 to 1 जो लर्नर है होते मैम, हैं। मुझे ऐसा फील होता है कि आप जो है ना वो हाथ के हाथ जो है वो, अगर आपको कोई इशू है तो आप उसी वक्त का उसी वक्त जो है ना वो डिस्कस भी कर सकते हैं और वो सारी चीजें कर सकते हैं, आई फील लाइक। तो हम्म। आई एम फॉर दैट इंशाल्लाह ताला। सही। बस आपको फीडबैक देना था, सवाल कोई नहीं था। जी मैम, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जी मिसेरम। मैं ये पूछना चाह रही थी कि एक तो ये जो सॉफ्टवेयर है इसमें ये हमें ये अलाउ करेगा कि, क्योंकि सॉफ्टवेयर में तो भी हमने नहीं अपना लेवल 1 का कोई भी सामान डाला, तो हमें ये डायरेक्ट लेवल 2 पे जंप करने देगा? और बिल्कुल करने देगा। दूसरा, जब आपकी हाँ, वो क्या कहते हैं, सर्टिफिकेशन या कोई चीज़ ऐसी उसको फीड कर दी जाएगी आपकी तरफ से, तो ये करने देगा आपको। अच्छा मतलब पहले हमें इसको अपना सर्टिफिकेट दिखाना होगा लेवल 1 का, आपने फिर नहीं ये हमें दिखाना होगा अलाउ ना। करेगा? आप आपको जब ये सॉफ्टवेयर में जाना है, इसका प्रीमियम वर्जन लेना है, तो आप डेफिनेटली टीम से कंसल्ट करेंगे, तो टीम आपको गाइड कर देगी कि आपको क्या करना है। अच्छा ठीक है। और दूसरा ये मेरा सवाल ये था कि जो आप ये कह रही हैं कि भाई आपको जो इशू आएंगे आप अपना टास्क जो डन करेंगे उसको आप नोट्स का एक सेक्शन आएगा उसमें आप अपने इश्यूज लिख सकते हैं, तो उस जो नोट्स हम लिखेंगे अपने इशू लिखेंगे उसके पीछे भी तो कोई हमें गाइड करने वाला ही बैठा होगा ना, या कोई वो ह्यूमन एलिमेंट नहीं होगा, वो सिर्फ एआई ही हमें गाइड करेगा? हमें कभी भी ह्यूमन असिस्टेंस कहीं पे भी छोटी मोटी भी अगर हम सेल्फ ड्राइव है तो हमें बिल्कुल भी नहीं मिलेगी? या तो ये करें कि भाई हफ्ते में एक दफा कोई 10 मिनट का जो मैंने है कहा जो। ना मिसेरम, अभी के लिए ऐसा है कि हम वंस इन अ मंथ एक सेशन रखा करेंगे उन लोगों के लिए जो सेल्फ ड्रिवन लर्नर है। ये अनाउंस हुआ है संडे को, जो जब हमने इसका वेबिनार किया है, और हमने वहाँ पार्टिसिपेंट्स को ये अनाउंस किया है कि जो जो खुद अपने पेस पे सीखेंगे और करेंगे उनके लिए महीने में एक उनको सेशन मिलेगा। क्योंकि देखें, आपने पे किया सिस्टम के लिए। मैं बार बार ये बात बता रही हूँ, क्योंकि जो चीज़ यहाँ जो बंदा बैठ रहा है ना, उसके टाइम की भी वैल्यू है। वो बंदा आपके साथ क्यों बैठेगा आके? आपने पे किया है सिर्फ सॉफ्टवेयर के लिए कि आपको ये सॉफ्टवेयर से अपना अपने आप को बूस्ट करना है, अपनी पर्सनल ग्रूमिंग करनी है, अपनी डेवलपमेंट करनी है, इसलिए। सिस्टम के बंदे का जो टाइम जो है वो वैल्यू कौन करेगा? वो भारी पड़ रहा है सिस्टम को। सिस्टम उसको हायर भी कर रहा है और उसको पे भी कर रहा है। तो अगर आपको इस तरह की कोई गाइडलाइन चाहिए, तो फिर उसके लिए फिर आपको सिस्टम में आना पड़ता है ना। ठीक है। मतलब मैं इसीलिए बहुत स्ट्रेट एंड ट्रांसपेरेंट बोला कि पाकिस्तान में कोई चीज़ फ्री या किसी भी दुनिया में कोई चीज़ फ्री दे दो तो कोई उसकी कदर नहीं करता। तो जो बंदा यहाँ आगे बैठेगा ना, वो एक घंटा भी वेबिनार करता है तो वो कहेगा कि मैं इस टाइम पे टाइम क्यों दूँ। और बाकी सारा टाइम वी आर सो मच पैक, आपके सामने है सबकी रूटीन, सब चीज़ें जो चल रही हैं। तो वंस इन अ मंथ भी अल्हम्दुलिल्लाह अगर टाइम हम सब मैनेज करते हैं, तो विल गो फॉर इट कि हम एक महीने महीने में एक बार, और हमारी मैक्सिमम 3 से 4 लोग लाजमी बैठे हो सेशन में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कम टाइम में हैंडल किया जा सके। ठीक है, शुक्रिया। ठीक है। बहुत शुक्रिया। जी मिस गुलशान। मिस मरियम, ये जो लेवल 2 हम लोगों ने करना है, इसमें लेवल 2 में हमारे 50 इंटरनेशनल एजुकेटर्स के साथ भी हमने कनेक्ट करना है। फिर हमने इसमें डुलिंगो जो है उसको भी, उसका जो एग्जाम है वो भी पास पास करना है। तो जो बंदा करेगा अपने भी हाथ पे करेगा,
उसके लिए ये काम थोड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा? और अगर नहीं, चल उससे कुछ फर्ज मुश्किल नहीं होगा। उसको हमने गाइड कर दिया ना लेवल 1 में। जो जो बंदा 101 कंसल्टेशन के साथ लेवल 2 में जा रहा है ना, तो उसके लिए तो चीज़ें बहुत आसान होगी। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करा सकता है कि मैं रेहान एआई टीचर इंस्टीट्यूट का ट्रेनी हूँ, पार्टिसिपेंट हूँ। इस वजह से मैं ये सारे सिस्टम कर रहा हूँ, और जितने भी इंटरव्यूज मैं करूँगा ये रेहान एआई टीचर इंस्टीट्यूट के बिहाफ पे कर रहा हूँ। ये कोई मेरी पर्सनल जो है ना वो चीज़ नहीं है। मतलब एक चीज़ होती है पर्सनल, इसका मतलब कि आप उसको कहीं सेल नहीं कर सकते, आप किसी के साथ कोलैबोरेशंस नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपके टास्क हैं और ये आपके सर्टिफिकेशन के लिए कंपलसरी हैं। मतलब आज जैसे मैंने एक इंटरव्यू किया, ही इज़ अ प्रोफेशनल पॉडकास्टर। वो जो इंटरव्यू करते हैं वो इंटरव्यू सेल करते हैं। मतलब आप मेरे साथ एक लिंक शेयर करते हैं कमेंट सेक्शन में मैं उसको कहता हूँ अफिलिएट मार्केटिंग। उसमें मैं ये कहता हूँ कि ये इंटरव्यू मैं आपके लिए करूंगा, लेकिन इसमें इतना परसेंट मेरा होगा, क्योंकि मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आपके लिए क्लाइंट हंट कर रहा हूँ, क्लाइंट को आपके लिए एग्री कर रहा हूँ। इन 3 चीज़ों के मैं आपसे लूंगा पैसे। अब उसमें परसेंटेज वाइज हम शेयर रखते हैं अपना, कि आपको जो क्लाइंट से मिलेगा उसमें मेरा 40% या 35% मेरा होगा, बाकी आपके अपने, क्योंकि मैंने आपको टाइम दिया अपना, आपने मुझे हायर किया था इंटरव्यू के लिए। दिस इज द सेम, कि अगर आप जो है कोई ऐसा काम करते हैं जब आप इंटरव्यू कर रहे हैं, तो आपने किसी को वो इंटरव्यू इस पर्पस के लिए नहीं देना। आपने इसलिए करना है क्योंकि आप ये टास्क का हिस्सा है। जब आप 50 इंटरव्यूज कर रहे हैं उसके बाद आप किसी के साथ भी जाकर कोलैबोरेशन करें, कुछ भी करें, यू कैन गो फॉर इट। और जैसे आप अभी लेवल 2 कर रही हैं, लेवल 2 के आप भी स्टूडेंट हैं, तो आप जी। लोगों की बकायदा कोई इस तरह से क्लास होती है? और अगर होती है तो नहीं, आपका मेंटर कौन है? हम अपने सेल्फ ड्रिवन लर्नर पेस पे कर रहे हैं जिसका अनफॉर्चुनेटली कोई अभी सर पैर नहीं है। तो जिसको जितना टाइम मिल रहा है वो अपने टाइम के हिसाब से काम कर रहा है। अदरवाइज वी आर नॉट कंडक्टिंग एज अ क्लास। हम सिर्फ क्लास एक कर रहे हैं जो कि टीम के लिए बिहाफ पे वो इसी तरह से है कि हम आधे घंटे की क्लास करते हैं, उसमें आगे हम अपने एक चैलेंजेस बताते हैं कि मुझे ये चैलेंज आ गया, मुझे ये आ गया, मुझे ये आ गया। ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट आई couldn't फिक्स इट। तो फिर हम एक दूसरे से पूछते हैं कि आपने कैसे किया, आपने कैसे किया, दैट्स इट। इससे ज़्यादा बढ़ के हमारी क्लास के अंदर कुछ नहीं है। बस ये चीज़ें हैं हमारी क्लास तो में। मैम ये तो फिर एक ग्रुप एक्टिविटी हुई ना, तो इसमें तो हम मिलके एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो सॉफ्टवेयर पे अकेला बंदा कर रहा होगा उसको तो ये बेनिफिट नहीं है। या तो फिर जो अकेले लोग करें उनका कुछ एक ग्रुप होना चाहिए, कोई कन्वर्सेशन होनी चाहिए जहाँ पर वो सारे जो लेवल 2 के लोग हैं आपस में बात करके, जैसे आप लोग करते हैं, लेवल 2 के लोग खुद आपस तो में बात करके एक दूसरे को गाइड ये कर बात दें। तो तो देखिए, हमें तो ये तो हम नहीं करेंगे ना। ये तो आपको अपने लिए खुद ढूंढना है ना ये सारी चीजें। देखिए, आप तो हमने वो शो अपने होंगे लेवल 2 घर के पे, लोग, उसमें शो होंगे कि भाई ये लोग लेवल 2 में हैं, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके सोशल मीडिया हैंडल्स होंगे वहां पर। ये तो कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं ना, कोई क्यों आपके साथ करेगा? आपको खुद देखना पड़ेगा ना। जैसे अभी आपके 3-4 लोग आपको यहीं क्लास से मिल जाएंगे, तो आपके 3-4 लोग तो यही आपके जो है वो टीम मेंबर बन जाएंगे, और आप लोग एक दूसरे के साथ अकाउंटेबिलिटी कर सकते हैं। आप रोजाना बैठे स्ट्रीम यार्ड पे एक दूसरे के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करें और अपने क्वेश्चन, अपने प्रॉब्लम के सोल्यूशन ढूंढ लें। हाँ, मैंने ये कहा है कि जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी, दैट्स नॉट द क्लास एक्चुअली, क्योंकि टीम मेंबर्स जो है ना वो ऑलरेडी सिस्टम में बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको क्लास की ज़रूरत नहीं है। वो 2 घंटे की क्लास नहीं ले सकते, वो घंटे की क्लास भी नहीं ले सकते, क्योंकि हर किसी के टाइम बहुत डिफरेंस है। अब जो रहमत एम्पावरमेंट वाला उस क्लास में बैठते हैं और हमें लीड करते हैं उस क्लास में एज अ कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेटर, वो क्या करते हैं, वो सिर्फ आके हमसे पूछते हैं, भाई मैंने मीटिंग करनी थी और मैंने मीटिंग कंडक्ट कर दी, अब इसमें मरियम आए ना आए ये मरियम की एंड पे है। रहमत सर ने मीटिंग कंडक्ट करनी है, वो 4 लोग आए, वो 5 आए, वो 10 टीम मेंबर्स आ जाए, ही हैज टू जस्ट गो फॉर द मीटिंग, और उन्होंने मीटिंग करनी है। तो वो ऑलरेडी सिस्टम में होने की वजह से वो सब अपने अपने टाइम से काम कर रहे हैं। रहमत सर का रात का टाइम है, लेकिन वो दिन में फिर भी टाइम निकाल रहे हैं। मेरा दिन में टाइम है, मैं दोपहर में भी टाइम निकाल रही हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे लिए डिफरेंट है, आप पार्टिसिपेंट्स के लिए डिफरेंट होंगी, लेकिन जब हम पार्टिसिपेंट्स की लेवल 2 की क्लास करेंगे ना, तो डेफिनेटली उन पार्टिसिपेंट्स के लिए प्रॉपर जो है वो हम उसको कहते हैं कि एक क्लास रखेंगे, और जो ओपन है यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी, जहाँ चाहे आप उसको देख लें। जी। आसिफ मिस भाई, मरियम, एक आपका क्या सवाल है सवाल? मेरा। जी मिस्टर वेरिया। मिस मरियम, मेरा ये सवाल है कि जो चीजें जो की क्लासेस हम लोग ले रहे होते हैं, ये आप डे टू डे अपलोड कर रही होती है, ठीक है, आवाज़ तो यहाँ बहुत कम आ रही। होती है। हाँ जी। हाँ जी। तो ये मैं कह रही हूँ, जो आप जो हम लोग क्लासेस दे रहे हैं, तो आप अपने फेसबुक पेज पर अपलोड कर रही होती है,
तो वो लोग जिन्होंने पे नहीं किया तो वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट इससे फायदा उठा रहे हैं। तो ये थोड़ा मुझे बताएं कि like, समझ आ गई मुझे। अच्छा मिस जवेरी, ये सवाल बहुत ही अच्छा है जो आपने पूछा है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट फ़ायदा उठा रहे हैं ना। मैं आपको बहुत जेन्युइनली बता रही हूँ, आज तक कोई ऐसा बंदा हमें नहीं मिला जिसने फ्री ऑफ कॉस्ट आके हमें कहा हो कि मैंने आपका 2 महीने का कोर्स आपकी क्लासेस देख के पूरा कर लिया। हर चीज़ फ्री पड़ी हुई है रेहान सर की, हर चीज़। किसी बंदे ने आज तक हमें नहीं कहा कि मैंने आपका फलां कोर्स देखा है और मैंने इसको कंप्लीट कर लिया, अब मुझे उसकी सर्टिफिकेशन दे दें। वी नेवर गेट एनीवन। ठीक है। अब ये जो सॉफ्टवेयर भी निकाला है वो सिर्फ इसीलिए निकाला है कि थोड़ी सी जब आप वैल्यू ऐड करेंगे तो शायद आपको एहसास हो जाए कि मेरे पैसे लगे हैं और मैंने इस पे काम करना है, तो यू कैन गो फॉर इट। ठीक है। चीज़ें तो फ्री कब से पड़ी हुई हैं, हम ये सिस्टम लास्ट अक्टूबर से शुरू किया हुआ है, अक्टूबर से लेकर अब तक की सारी क्लासेस, हर चीज़ मैंने पहले दिन ही बताया था कि हर चीज़ फ्री है। लेकिन हम ऐसी कौम है जो कि फ्री की चीज़ों को भी वैल्यू नहीं करते, और हम समझते हैं सामने बातें ही हो रही है, हमने क्या करना है। हम नहीं कर रहे। हम में से कितने लोगों ने सिर्फ इसको देख के ज्वाइन कर लिया, लेकिन उन्होंने इंडिपेंडेंटली इसको कंप्लीट नहीं किया। तो अब गॉड नोज बेटर कि ये सॉफ्टवेयर भी कितना हेल्पफुल होता है किसी के लिए या नहीं होता। जी आसिफ भाई, ये किसी का ये नुकसान नहीं मैं है, अगर इसको कोई इंडिपेंडेंटली भी करना चाह रहा है ना तो उसको फायदा ही होगा, और जो हमसे आगे भी करेगा उसको इंशाल्लाह इंशाल्लाह फॉर श्योर उसको बेनिफिट्स ही मिलेंगे। जी आसिफ भाई। आसिफ भाई। हमारी जो क्लासेस होती हैं हमारी, उन पे क्लास नंबर होना चाहिए कि। आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी आवाज़ आ रही है। जी हाँ, हमारी जो क्लासेस जो होती हैं हमारी, उनपे नंबर होना चाहिए कि ये कौन से नंबर की क्लासेस होनी चाहिए। तो फिर सीक्वेंस से हम ले सकते हैं ना। ऐसे एक वीडियो देखते हैं फिर पता नहीं क्लास 2 कौन सी है, 3 कौन सी है, मिक्स हो जाते हैं। ये चीज़ होनी चाहिए इसमें, आ, जो लाइव बिल्कुल करते मैं हैं। कोशिश करूंगी कि हम एक प्लेलिस्ट बना दें जिसमें लेवल 1 की प्लेलिस्ट अलग हो, लेवल 2 की प्लेलिस्ट यूट्यूब पे अलग हो। फेसबुक पे तो प्लेलिस्ट नहीं बन सकती, लेकिन हाँ यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बन सकती है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसको प्लेलिस्ट में ऐड करते रहें, ताकि फिर आप लोगों के लिए, ऑडियंस के लिए इसको फिगर आउट करना आसान हो जाए। बट मैं दोबारा यही कहूँगी, ये सिस्टम अभी बहुत छोटा है, इससे इतनी बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस ना रखें। अभी हमें बहुत सारी गलतियाँ करके सीखना है, और आप सब फीडबैक देते जाएंगे तो फिर हम उस फीडबैक से सीखते जाएंगे। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, और आपके वैल्यूएबल फीडबैक का बहुत शुक्रिया। जितनी ज़्यादा आप हमारी रहनुमाई करेंगे, हम उतनी ज़्यादा चीज़ों को रिफाइनरी की तरफ लेके जाएंगे। तो इंशाल्लाह, ये मैंने पॉइंट नोट डाउन कर लिया प्लेलिस्ट का, तो इंशाल्लाह आई गो फॉर इट। बट मैं ये नहीं कह रही कि अभी हो जाएगा, अच्छा मैम। इन फ्यूचर इट विल बी पॉसिबल। अच्छा मैम, आप जो सीख रहे हैं, आप कोई टीचर नहीं है, आप खुद से सीखते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप वो एआई से हल करवाते हैं, प्रॉब्लम एआई से मसला सॉल्व कराते हैं। जैसे आपने डीएचएल का क्लोन बनाया, तो वहाँ पे भी हम्म। आपको चैलेंजेस आए होंगे। हाँ, मैंने सारा कुछ जो है वो एआई से किया, या फिर मैं अपने स्टूडेंट्स पकड़ती हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपना टाइम दे दो, फिर वो जब वो अवेलेबल होते हैं वो मुझे बता देते हैं, या वो खुद कॉल कर लेते हैं। हमें साहब ने कहा था, मतलब अल्लाह का शुक्र है, आई गॉट दिस मच रिस्पेक्ट कि मैं अगर एक बार भी मैसेज करूँ तो मेरे सारे बच्चे हाजिर हो रहे थे कि आप बताएं क्या काम है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट सिस्टम, कि ये सिस्टम की वजह से है, और जब तक सिस्टम में हूँ तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी कोशिश यही होती है कि कोई भी ऐसी चैलेंजेस हो, कुछ भी हो, तो मैं सिर्फ बात सुन लूँ या किसी से डिस्कस करके सिर्फ पूछ लूँ करना कैसे है। उसके बाद अगर फिर भी चैलेंज आता है तो आई गो विद चैट जीपीटी, आई विल गो विद एआई। मेरी कोशिश होती है कम से कम किसी को तंग किया जाए, बस। अच्छा। हम्म। अच्छा, पहले अगर अपनी रिसर्च हमने पूरी कर ऐसी लें खुद आप चीज़ें कोई करना अपने। शुरू कर दे, और हमारे हाँ पास पहले कोई ऐसा मसला आ जाए, तो हम किससे हेल्प लेंगे? आपके तो स्टूडेंट हैं, हमारे तो स्टूडेंट्स भी नहीं है, हम किससे हेल्प लेंगे? आपके किसी लिए से ले मैंने जैसे सकते कि हैं? कहा ना कि आप बिल्कुल ले सकते हैं, आपके कनेक्शंस बहुत अच्छे हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको ये चैलेंजेस आ रहा है तो उसके बारे में आपको गाइड कर दिया जाए। अगर वो सामने वाला पार्टिसिपेंट एग्री है आपको गाइड करने को और आपको टाइम देने को, यू कैन गो फॉर इट। ओके। ठीक है। जी आजम भाई। अच्छा मैम, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे अभी आपने बताया कि यूट्यूब के ऊपर जो क्लासेस हैं, हमारे जो लिंक्स हैं फेसबुक के ऊपर भी शेयर हुए हुए होते हैं और यूट्यूब के ऊपर भी हुए हुए होते हैं। तो अगर
हम लोग आगे अपने जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं उसके ऊपर भी अगर हम लोग शेयर करें टू एजुकेट पीपल के आप लोग जो है वो इसके थ्रू जो है वो सीख सकते हैं, तो उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है कि मैं अपने सोशल मीडिया चैनल्स बिल्कुल कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बल्कि हम तो रिक्वेस्ट करते हैं पार्टिसिपेंट से प्लीज़ अपनी क्लासेस को अपने वॉल पे शेयर किया करें, ताकि आपकी वजह से शायद कोई ऐसे पार्टिसिपेंट जो हम तक नहीं पहुंच रहे उन तक ये पहुंच जाए। हम तो ओके। इसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि इसको जितना हो सकता है इन हमारी पोस्ट को, हमारी वीडियोस को, हमारी क्लासेस को आप आगे से आगे शेयर करते जाएं ताकि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सिस्टम को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, ऐसे कुछ सीखना चाह रहे हैं, लेकिन उन तक अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची, अवेयरनेस नहीं पहुंची। वो पहुंच जाए तो शायद उनका भला हो जाए, उनका फायदा हो जाए। थैंक यू वेरी मच। जी, यू वेलकम। पार्टिसिपेंट्स मैं रिक्वेस्ट करूंगी ये आज की टेट टॉक आप इंडिपेंडेंट देखेंगे, और वैसे टेट टॉक बहुत अच्छी थी, बट अब ऐसा है कि हमारे पास 20 मिनट बाकी हैं, तो हम रिव्यू सबके तो नहीं ले पाएंगे, और फिर टेट टॉक भी ऑलमोस्ट है 15 मिनट्स की है, तो वी डोंट हैव टाइम, क्योंकि मेरी एक मीटिंग है जो कि बहुत ज़रूरी है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब इंडिपेंडेंटली टेट टॉक देख लें और अपने रिव्यूज रिकॉर्ड कर लें और अपने टास्क कंप्लीट कर लें, ठीक है। शफीक भाई और अहमद मुस्तफ़ा भाई, दोनों को बहुत अच्छे से सॉफ्टवेयर समझ में आ गया, कोई सवाल नहीं था, कोई बात नहीं थी, कोई सजेशन नहीं थी, और लुबना की भी नहीं थी। नहीं ठीक है, सारी बातें क्लियर हो गई थी। कोई मतलब मजीद जी अगर कोई मैम, मेरे प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन तो पूछने थे, बस पूछिए। लेकिन वो चलें ठीक है शफीक भाई, मुझे इरम ने इंतज़ार और रहेगा आपके सवाल गुलशान का ने पूछ शफीक भाई। लिए थे, तो वो चलें मेरे भी ठीक वही है, क्वेश्चन थे, तो वो मेरे आंसर क्लियर हो गए थे, फिर उसके बाद इस वजह से फिर बनी नहीं। ज़बरदस्त। जी अहमद मुस्तफ़ा। मैम जी समझ आ गया। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि मैम हमारी गूगल शीट्स चेक करती रहें, और क्योंकि लास्ट डेज चल रहे हैं तो मैं बता दें अगर उसमें भी चेंजेस करनी है या अगर हमने टास्क कंप्लीट करना है तो उसका बताएं। ठीक है, मैं अभी अपने स्पाई जो है वो आप सबके पीछे लगा रही हूँ, बस कल का दिन दे दो मुझे, फिर हर किसी की गूगल शीट अलग अलग चेक हो जाएगी, ठीक है। बहुत शुक्रिया। अहमद भाई मिस आपका मूड ओके। नहीं है लेवल 2 करने का? मैम कुछ कह नहीं सकता, लेकिन अब ऑब्वियसली इरादा तो है। चले, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। जी मिस गुलशान। ये जो पिछले 2 दिनों में टास्क शेयर हुए थे ना हमारे सर, उसमें जो एआई का सेशन है ना वो रिपीटेड है। तो चलो ठीक आप है, क्या इग्नोर करें मतलब उसको। अब नहीं, मैं और नहीं अब शेयर हम करी, उसको इग्नोर करते हैं। पेस्ट कर देंगे। तो जब नहीं आप लोग चेक करेंगे तो क्या ये भी आप चेक करेंगे कि ये रिपीटेड है? नहीं, आप पेस्ट नहीं करें ना उसको, आप बस उसकी डिस्क्रिप्शन के सामने लिख दें जहाँ पे लिंक लगाना है ना, रिपीटेड, दैट्स इट। आप ना दोबारा पेस्ट करें उसको। मिस जवेरी अपना सवाल कीजिएगा प्लीज। मिस जवेरी माइक खोलिएगा अपना। नहीं, वो उसके फीस के हवाले से ही था, क्लियर कर दिया था, मुझे याद आ गया मुझे कि उन्होंने बता दिया था। कोई बात नहीं, आप दोबारा पूछ लें, कोई मसला नहीं है, नहीं नहीं, फीस मेरी के हवाले एनर्जी से बहुत है, आप पूछें। सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन का जो था ना, तो उसका था कि वो कोर्स की फीस सेम फीस होगी नेक्स्ट लेवल। सब्सक्रिप्शन किसकी पूछ रही हैं आप? ना ना ना, कोर्स लेवल 2 की फीस, लेवल 2 की। लेवल 2 की फ़ी, अब ये ऑनेस्टली मुझे नहीं पता, ये जो फ़ी वाला काम है ना, ये सर जयप्रकाश एजुकेशन वाला ही बता सकते हैं आपको कि क्या चीज़ें और किस तरह से हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर की मुझे पता था, क्योंकि सॉफ्टवेयर आजकल मैं हर जगह ही इंट्रोड्यूस करा रही हूँ, और उसके बारे में पता था, तो वो मैं बता सकी, ठीक है। मिस लुबना, मिस गुलशन, आप दोनों में चलें जी, ठीक है। पार्टिसिपेंट, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज क्लास, विल सी यू टुमारो एट दिस same time 9 p.m. sharp. Complete your all the tasks and keep doing amazing things. Allah Hafiz. Good night. Sleep tight.